वो कहते हैं कि दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लो तो ज्यादा जल्दी आगे आ जाते हैं। आई हैव आल्सो डन दैट सेम थिंग। तो या चलो कम बैक टू द क्लास। मेरी स्क्रीन एक बार देखो शेयर हो रही है। जिन लोगों को मेरी आवाज इको हो रही है वो लोग राइट क्लिक करके मेरी स्क्रीन पर स्क्रीन को म्यूट कर दें। ओके, स्क्रीन विजिबल है? ओके विजिबल, यस, ओके फाइन, लेट्स गो। तो वेलकम एवरीवन। यहाँ पे लाइक आई हैव शेयर्ड दिस स्क्रीन, दिस व्हाट यू से, दिस इथेरियम ब्लॉकचेन। वेट, व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग? यस, ओके, आई होप सो दिस इज विजिबल। या जिन लोगों को मेरी एक आवाज इको हो रही है, अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि वो लोग राइट क्लिक करके माइस को थोड़ा सा वो कर लें। ओके, ओके, okay, let's get started. If possible, English, someone is requesting. Okay, yeah, I will try to be keep in English. That would be great. Okay, now let's get started about the what is Ethereum blockchain. Okay. Uh, so see, we have already studied a lot of about the Bitcoin. What is Bitcoin? How it works? Who didn't attend? So whoever didn't attend that particular session, so I would request you to go to through the lectures. Okay, we have the lectures in our blockchain group or blockchain channel. Sorry, not a group. Blockchain channel in the Discord. I guess Anirudh can mention it here. So in that channel you can go. I have pinned the slides. Okay. If you scroll up a little bit, you will get the playlist where Vidyasagar, like big shout out for him actually. So he has recorded my lectures and uploaded his own channel. So you can just go. It's my requesting. I'm requesting to anyone from the this class can record this particular session and send it to Vidyasagar so he can upload on his channel. So who have subscribed those channel, they get the notification or they can get the recording. Okay. Now let's get back to the what is Ethereum. So see, we have already seen the Bitcoin. We have already seen the basic structure of the blockchain. Now let's see how what is Ethereum. So Ethereum is nothing but the another. I'm telling again, this is nothing but this is the Bitcoin. Sorry, this is the protocol. I already mentioned this thing many times. Bitcoin, Ethereum, and other the blockchains that are blockchain, but eventually we call them as a protocol. What we call them as a protocol. Why? Because it is nothing but the just a set of rules to form a network in which the multiple nodes, multiple machines are participating to run this network. Okay, because this is decentralized. Because this is decentralized, there is no centralized person. Okay, there is no centralized person. कोई भी central person नहीं होता है जो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करे। तो यहाँ पर नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि हमने प्रोटोकॉल पढ़ा। प्रोटोकॉल मतलब कि सेट ऑफ रूल्स जो कि नथिंग बट दी इट्स अ ब्लॉकचेन। ओके, उस ब्लॉकचेन में हम लोगों ने बिटकॉइन कवर करी। ओके, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल समझा। आज हम लोग पढ़ने वाले इथेरियम का इथेरियम प्रोटोकॉल। सो और आगे जाके वी विल बी ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर इथेरियम ओके ब्लॉकचेन। So see, you have the multiple option, guys. You can just go with Solana. Solana is also another, you can say the blockchain. It's another protocol, another you can say that the network on that you can go. Okay, Ethereum is another blockchain. So there are a lot of blockchain in the market which you can choose it to choose it for your development. But I will be going through or I will be moving forward with the Ethereum. Why? Because first of all, I'm a Ethereum developer. Okay, so there are multiple developers in the market, Solana developers, Ethereum developers, according to the blockchain. I'm a Ethereum developer. I work on the Ethereum. And second thing is that everybody says Ethereum is basically beginner friendly for the people or for the developers who are coming in the Web3 first time. Okay, so what happens because Ethereum is the first blockchain that we will be just understanding a little bit later. Ethereum is the first blockchain which has introduced this concept of coding into the blockchain, or we can run the code on the blockchain. So that's why I'm just moving with the Ethereum.
Now let's get started with the history of the Ethereum. So this is I have just just some theory I have written it, but I will be just reading the main points. So this is the when this is the history from when from the Ethereum has started, and now what's the update has been coming along with this. So what is it in the what happened in the 2013. So in the 2013 was the first, I would say, is the year where concept of intro to basic concept of Ethereum, or basically Vitalik Buterin. He's the founder of the Ethereum. Actually, he has created the, this whole Ethereum blockchain. लकीली ये अच्छा है कि ये एनोनिमस नहीं थे सतोशी नाकामोटो की तरह, क्योंकि उन्हें तो कोई जानता भी नहीं है ना, उनकी कोई इमेज है. बढ़िया, लाइक वी कॉल इट कि बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो ने बनाया. बढ़िया, इट्स लाइक वेरी गुड कि विटालिक ब्यूटरिन जो थे, जब वो 17 साल या अप्रोक्स 18 साल, यानी कि व्हेन ही वाज इन एज ऑफ 18 एंड 17 19, he has created this network. He came up with this concept of Ethereum white paper. So in the 2013 this particular concept has introduced, that is the Ethereum. What is this? We will be just we will be studying a little bit later, okay, but just be with me. Just I'm telling you कि when Ethereum came. अब एक्चुअली इससे पहले समझते कि इथेरियम आया क्यों, क्योंकि एनीथिंग केम इनटू द मार्केट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगेन मार्क माय वर्ड्स, एनीथिंग कम्स इनटू द मार्केट, देयर इज समथिंग रीजन. ओके, अगर कोई भी चीज इतनी स्केल पे जा रही है तो कोई ना कोई रीजन होता है कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है. जब बिटकॉइन आया था तो उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि ऐसी करेंसी को लॉन्च करना जो कि सेंट्रलाइज ना होकर डिसेंट्रलाइज हो, जिसके जिसके जिस रेगुलेशन जो पावर है वो किसी एक के हाथ में ना. जैसे ही जब इथेरियम आया तो इथेरियम में जो सबसे बड़ा चेंजेस जो किया गया था वो ये किया गया था. इथेरियम ने बोला कि हमारे ब्लॉक्स में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं. अगर हमने किसी को बिटकॉइन भेजा है, लेट्स से यू नो आई सेंड 2 बिटकॉइन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट? So that transaction I am storing in the blockchain of Bitcoin. Okay, again mark my words. What I'm doing here, I'm storing the records of transaction in my blockchain database. See, this is something wrong. I'm calling its database, but for your simple understanding, okay, let's just not use this database. Okay, I already explain and throw a light on this key. Why shouldn't call it is this database? It is more than the DB. But yeah, you can say कि in the blockchain we store the sort of transaction, जहां पर जैसे मान के चलो कि आप अपने डेटाबेस में, आरबीआई है वो क्या करती है, वो हमारे डिजिटल डेटाबेस यानी डिजिटल जो हम लोगों का जो नंबर्स में जो हम लोगों को पैसा दिखता है कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस है, उसको क्या करती है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स करती है. तो रिकॉर्ड कहाँ होता है, वो सेंट्रल सर्वर में होता है. वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉकचेन में हम लोग उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ब्लॉकचेन में. अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि इथेरियम ने ये बोला, यानी विटालिक ब्यूटरिन जो कॉन्सेप्ट लेके आया, उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ पर अपना डेटा स्टोर करते हो. आपने ये डेटा स्टोर किया कि आपने 1 BTC से एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया, कुछ आपने सॉर्ट ऑफ लेट्स से कुछ क्रिप्टो करेंसी आपने ट्रांसफर की. लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप इसको डेटा को रखने के, मैं एक बार इसको आपको ना वो दिखाता हूँ, या दिस वन. सी, हियर वी हैव द T1 T2 T3. ये क्या है, ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम लोग स्टोर करते हैं. लेकिन विटालिक ब्यूटरिन ने ये कहा कि क्या हम लोग इस ब्लॉक पर अपना कोड रन कर सकते हैं, कोड भी तो रन कर सकते हैं ना हम लोग. let's say if I want to run the code on the blockchain, can I run it or not? So when he proposed it, so अगर तुम लोगों को कुछ Reddit post मिल जाएगी, when he proposed this particular idea in front of the Bitcoin community, or basically the blockchain community, lot of people had raised this issue कि no, that can't happen, you cannot run the code on the blockchain. But the beautiful thing about the blockchain is that he has created its own project. He has created this Ethereum, this project, and this project he introduced the concept of the coding, like you can run the code on the blockchain. तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स में अपना डेटा रखते थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा चीज, वो डेटा इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन्होंने बोला कि हम उसके ब्लॉक के अंदर हम लोग कोड भी रखना स्टार्ट करेंगे, हम लोग कोड भी चलाना स्टार्ट करेंगे. और आज हम लोग इथेरियम को देखते हैं, क्यों? क्योंकि इथेरियम वो ऐसा पहली ब्लॉकचेन थी जिसने ये कोड को इंट्रोड्यूस किया था. तो 2013 में इन्होंने व्हाइट पेपर लॉन्च किया था जिसमें इन्होंने सारी की सारी चीजें बताई हुई थी. रिमार्क दिस हिस्ट्रीज बिकॉज समटाइम्स इट पास इनटू द नॉट
फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इनटू द इंटरव्यूज। बट अगर जैसे लेट्स से कि अगर बहुत स्पेसिफिक इंटरव्यू चल रहा है ईवीएम से रिलेटेड, तो उसमें काइंड ऑफ ये कभी कभार हिस्ट्री पूछी जाती है, तो पूरा ही नहीं है कोई भी याद रखने में। तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि व्हेन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क हैज इंट्रोड्यूस। ओके, वेट, देयर इज सम मैसेजेस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस। ओके, नाउ इन द 2014, उसके बाद इथेरियम ने बेसिकली ऑफिशियली इथेरियम का डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। उन्होंने उस टाइम पर सबसे बड़ी फंडिंग उठाई थी $18 मिलियन की, उस टाइम पर बिटकॉइन में। दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, देन 2015 में उन्होंने इथेरियम लॉन्च किया था। नेटवर्क जो है वो लाइव गया था 30 जुलाई को, जिसको बोला गया था फ्रंटियर। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि जब लॉन्च हुआ था इथेरियम, तो उस टाइम पर उस प्रोजेक्ट को नाम क्या दिया गया था, तो बोला जाता है कि फ्रंटियर जो था वो नाम दिया गया था। 30 जुलाई को ये बेसिकली लॉन्च हुआ था। और 2016 में कुछ हैक्स हुए थे एक्चुअली, जिसकी वजह से इथेरियम को हार्ड फोक करना पड़ता। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे कि व्हाट इज हार्ड फोक, व्हाट इज सॉफ्ट फोक। ओके, उसके बाद हम लोग 2017 में हम लोगों को थोड़े से आईसीयूज के कॉन्सेप्ट्स आए। अभी ये सब लोग ना, मैंने क्यों तुम लोगों को लिखा है कि तुम लोगों को ये रटना नहीं है। वी विल वन बाय वन कवर द ईच पॉइंट। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो वैसे वैसे मैं हिस्ट्री पर बैक करूंगा कि 2014 में कौन सा, जैसे जैसे 2015 में लिखा हुआ है कि नेटवर्क लाइव गया था, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जैसे 2016 है, तो कल हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डाओ का, तो उसमें मैं ये डिस्कस करूंगा। सॉफ्ट फोर्क और हार्ड फोर्क जो हुआ था, कल वहां पर मैं ये डिस्कस करूंगा। तो वहां से फिर हम लोग बैक करेंगे 2016 में कि हुआ क्या था, तब तुम्हें ये पॉइंट समझ आएगा। जस्ट फॉर sake of purpose की, यू कैन जस्ट रिमाइंड दिस थिंग। 2017 में आईसीयूज हुए थे। आईसीयूज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आईसीयूज कॉन्सेप्ट, जैसे आईपीयूज सुने हैं ना, आईपीयूज होते हैं कंपनी में, वैसे ही आईसीयूज होते हैं ब्लॉकचेन में। उसके बाद 2018 में कुछ एफिशिएंसीज और कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया गया था। 2020 में दिस इज द वेरी बिगेस्ट अपडेट ऑफ द ब्लॉकचेन इन द हिस्ट्री ऑफ द इथेरियम ब्लॉकचेन। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज इथेरियम 2.0 के लिए लोगों ने सदियों से वेट किया था, और ये 2020 में कोविड के टाइम पर ये हुआ था। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। बीकन चेन, बीकन चेन करके एक अलग चेन होती है जो प्रूफ ऑफ स्टेक्स के लिए जानी जाती है, और प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉन्सेप्ट्स को स्टोर करती है। ये हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। बढ़िया, लाइक दिस इज द वेरी इथेरियम 2.0 लॉन्च हुआ था, जहां पर अभी हम लोगों ने बिटकॉइन में कौन सा कंसेंसस पढ़ के आ रहे हैं, जल्दी से बताओ चैट में। बिटकॉइन किस कंसेंसस पे काम करती है? प्रूफ ऑफ वर्क पे। ओके, करेक्ट, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करती है। इथेरियम आया था न्यू कॉन्सेंसस कॉन्सेप्ट के साथ, जिसने बोला था प्रूफ ऑफ स्टेक। तो अच्छा आदित्य, फिर ये 2020 में क्यों हुआ, जबकि ये तो 2013 में आ चुका था। एक्चुअली में 2013 2020 तक, यानी कि मान लो कि 2019 या 2020 के नवंबर या दिसंबर नवंबर तक जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो चल रहा था। उसके बाद 2020 में एक्चुअली में उन्होंने प्रॉपरली ट्रांजिशन किया था, जो मैं बता रहा था ना यहाँ पर। कहाँ गया ये, कहाँ गया यार? अच्छा ठीक है, चलो अभी आपको बताता हूँ। 2020 में उन लोगों ने ये प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट उन्होंने लाया था, जहां पर ये बोला था कि प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और कार्बन इमिशन है। तो इस चक्कर में बहुत सारी चीजें आई, और उन्होंने बोला कि हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाएंगे। तो इथेरियम ने प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को लाया था। 2021 में ये एनएफटीज की जो बूम थी वो आई थी। अगर तुमने सोचा हो, जो लोग 2021 में घर पे बैठे थे, सभी बैठे थे उस टाइम पर, तो शायद तुम लोगों को पता हो कि 2021 में एनएफटीज का कितना क्रेज चला था। उसके बाद 2022 में ये जो प्रूफ ऑफ स्टेक है, इसको फाइनली मर्ज कर लिया गया था, और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ये कन्वर्ट हो गई थी इथेरियम ब्लॉकचेन। तो इथेरियम भी लगभग, अगर मैं बात करूं 2021 तक, टोटल वर्क करती थी प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ वर्क की तरह, यानी बिटकॉइन की तरह। उसका 2022 में ये लोग फुल्ली नेटवर्क को शिफ्ट कर गए थे। और आज के टाइम पर जो हम लोग देख रहे हैं कि लेयर 2 सॉल्यूशंस, एनएफटीज, डाउज, ये वगैरह इथेरियम में आ रहे हैं। दीज आर द अपडेट्स। अब ये ना तुम लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तुम लोगों को लग रहा होगा कि बोरिंग सा, बट ये जरूरी इसलिए है ना, क्योंकि
जब तुम किसी ब्लॉकचेन के इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर करते हो तो यू शुड नो कि व्हेन थिंग्स केम, ओके। Let's say if I'm asking you, hey, do you know in 2013 that Vitalik, oh, what happened in 2013? Ethereum came in 2013. You are the Ethereum developer and you don't know when the Ethereum came, when hard fork and soft fork happened, because these are the very major events that you must know if you are in the Ethereum blockchain, if you are working in the Ethereum blockchain, because this is like something like you should know, because there is no if and but. Why should I know? Somebody will wanna ask me. No, because lot of the updates will be coming on the basis of the previous thing. If somebody is saying, hey, do you know the Ethereum Classic? Then for that you should know what is hard fork, what is soft fork, what happened on that time, why this decision had taken by the community. So for that you should know about this particular, this history. So one by one we will cover this history in today's lecture, and then I will tell you what what's this proof of stake. I will tell you what is 2.0 launch and what is going on in the industry currently, and the companies are working in the the blockchain of Ethereum. Okay, now let's talk about the accounts in Ethereum. तो हम लोगों ने पिछली सेशंस में देखे थे कि अकाउंट्स होते हैं, और मैंने शायद पिछले सेशन में मेटामास्क इंस्टॉल करके बताया था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। मैंने मेटामास्क बताया था, तो मेटामास्क में मैंने बताया था कि अकाउंट होते हैं, फिर अकाउंट एड्रेसेस होते हैं। अगर मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं। ये याद है, ये मैंने बताया था अकाउंट एड्रेस होते हैं ये, थोड़ा सा याद हो तो। ये अकाउंट एड्रेस होता है, ये आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करते हो तो ये आपका अकाउंट एड्रेस है, इट इज लाइक इक्वल टू योर अकाउंट नंबर, है ना। तो ये आपके अकाउंट एड्रेसेस हैं, ये कैसे की कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब अपन लोगों ने उस दिन देख तो लिया था, लेकिन अब अपन आज पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं एथेरियम में। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी। तो यस, तुम लोगों का जो टॉपिक था बार बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो टू टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं एथेरियम में, एक होते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट और एक होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कहीं पे भी कोई सा भी ब्लॉग्स पढ़ोगे ये दो कॉमन नाम तुमको कहीं पे भी मिलेंगे, इंटरनेट पे डाल लो, चैट जीपीटी पे डाल लो, कहीं पे भी डाल लो। These are the two main accounts in the Ethereum: externally owned accounts and the this your what do you say स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो अभी के लिए हम लोग एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट देखते हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को एक बार बताता हूँ। स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। ओके, एक काम करते हैं, इसको ना मैं यहाँ से सीएज अकाउंट हटा देता हूँ अभी के लिए, नेक्स्ट स्लाइड में इसको समझाऊंगा, ठीक है। देखो, तो अभी इथेरियम अकाउंट और व्हाट इज ईओए, ठीक है। अब थोड़ा सही है, अब तो मैं थोड़ा रिलेटेबल लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट होते क्या है। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो एक्चुअली में एक्सटर्नली ओन करे जाते हैं। मतलब कि जैसे जो तुम लोगों का वॉलेट होता है, वो वॉलेट जो अकाउंट्स बनाता है, वो सारे के सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्सटर्नली ओन्स अकाउंट होते हैं। आप जितने भी अकाउंट्स बनाते हो, आप मैंने कल भी तुम लोगों को बताया था कि एक वॉलेट में आप लोग, कल नहीं सॉरी पिछले वीक मैंने तुम लोगों को बताया कि एक वॉलेट में यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल अकाउंट्स, ओके। आपका अकाउंट वन हो सकता है, आपका अकाउंट टू हो सकता है, ठीक है। और वो सेम ब्लॉकचेन पे हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अलग अलग ब्लॉकचेन पे बनाना। तो देर यू कैन मल्टीपल अकाउंट्स यू कैन क्रिएट इट। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स क्या होते हैं, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि आपके वॉलेट्स होते हैं। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। एक्सटर्नली अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं जो कि एक्सटर्नली ओन करिए जाते हैं, मतलब किसी यूजर्स के थ्रू या यूजर या किसी वॉलेट के थ्रू क्रिएट या मैनेज किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली ओन अकाउंट। तो अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं, एक्सटर्नली ओन अकाउंट के अंदर बेसिकली ये बोला जाता है कि काफी टाइप के अकाउंट्स होते हैं, उनके अंदर फील्ड्स होती हैं। तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स के अंदर ना एक फील्ड होती है जिसको बोलते हैं नॉन्स। अच्छा, नॉन्स का कॉन्सेप्ट सबको याद है कि नॉन्स किस लिए यूज किए जाते हैं, याद है कि नहीं, याद है।
नॉन्स का कॉन्सेप्ट किस लिए यूज किए जाते थे बिटकॉइन में? नॉन्स इसलिए यूज किया जाता था बिटकॉइन में कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन माइन करता था यूजर माइनर, तो माइनर को डिफरेंट हैशेस को जनरेट करने के लिए नॉन्स एक नंबर होता था जिसको वो चेंज करता था, तो ड्यू टू द एवलांच इफेक्ट उस पूरे ब्लॉक का हैश चेंज होता था। और जब हैश चेंज होता तो माइनस का एट द एंड गोल क्या होता था कि वो टारगेट को अचीव करना। ठीक है, डिफिकल्टी जो होती है टारगेट की उसको अचीव करना, और अगर वो अचीव कर लेता था तो उसका ब्लॉक माइन हो जाता था। दैट्स द सिंपल वर्क ऑफ द माइनर। नाउ इफ आई विल गोना टॉक अबाउट हियर इन द इथेरियम, इथेरियम में एक्चुअली ये याद रखना कि वो जो प्रॉब्लम मैंने तुम लोगों को बताई थी ना कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इथेरियम में, वो हम लोग आगे बात करेंगे। वो सॉरी बिटकॉइन में, वो हम लोग इथेरियम में नहीं करते, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जो इथेरियम में जो नॉन्स होता है ना वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, देखो मैंने बोला था कि जहां जहां ब्लॉकचेन बदलेगी वहां वहां जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहेंगे, लेकिन जो ऊपर की जो क्रिस्प लेयर है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर जो नॉन्स है वो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, मतलब जो मेरे पास जो अकाउंट है उसमें नॉन्स कैसे काम करता है। अगर मैंने लेट से 1 BTC मैंने अपने फ्रेंड को ट्रांसफर किए, तो 1 BTC कैसे एक बात बताओ मुझे, कैसे वो नॉन्स को करेगा हैंडल अकाउंट जो है। तो वो उसमें ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। अ काउंटर दैट इंश्योर ईच ट्रांजैक्शन कैन ओनली बी प्रोसेस्ड वंस प्रिवेंटिंग रीप्ले अटैक। व्हाट डू आई मीन बाय हियर? लेट्स से क्या आपने ना बताता हूँ। मैंने बोला था कि नॉन्स का जो खेल होता है, नॉन्स का खेल क्या होता है कि ये तो नंबर चेंज होता है। तो ये क्या होता है, इथेरियम में नॉन्स को ट्रांजैक्शन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करा जाता है। मतलब कि जब आपके ब्लॉक में नॉन्स होता है, व्हेन यू हैव द नॉन्स इन योर ब्लॉक, ओके, तो जब आपके ब्लॉक में नॉन्स है इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है, लेट्स से नॉन्स की वैल्यू अगर 1 है, तो वो जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है उसके लिए नॉन्स की वैल्यू 1 ही होगी। अगर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए नॉन्स की वैल्यू 2 होगी। मतलब यहाँ पर जो नॉन्स है, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो वो इस तरीके से यूज किया जाता है कि हर ट्रांजैक्शन को रिपीट ना होने दे। मतलब ईच ट्रांजैक्शन जब वो अपने लिए जब वो यूनिक पहचाना जाता है तो उसके नॉन्स की वजह से, तो इसको बोलते हैं डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम। ये तुम लोग बहुत बार सुने होंगे, अगर नहीं सुने, अगर तुम लोगों ने सुना होगा, अगर तुमने रिसर्च करी होगी थोड़ी। लेकिन जिन लोगों ने रिसर्च नहीं करी है, डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम क्या होती है बहुत अच्छे से सुनना। डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है? लेट्स से कि तुमने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तुम्हारे SBI अकाउंट से 1 रुपीज का, ठीक है। अगर एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आरबीआई या फिर कोई भी बैंक इस 1 रुपीज के ट्रांजेक्शन को कहीं स्टोर ही नहीं करेगी या इसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं रखेगी, तो इसी सेम 1 रुपीज को मैं दोबारा से यूज कर सकता हूं। इसी सेम रुपीज को मैं तीसरी बार भी यूज कर सकता हूँ, चौथी बार भी यूज कर सकता हूँ, है ना। इसका रिकॉर्ड रखा जाता है और ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिकॉर्ड वो सारा चीज कैलकुलेट होती है। ऐसे यहां पर यह इंश्योर किया जाता है कि सारा डेटा तो सेम है, आपका ब्लॉक सेम है, आपका हैश सेम है, वो सब ठीक है। लेकिन जब आपका नॉन्स होता है तो नॉन्स एक ऐसी चीज होती है जो यूनिक होती है, और ये इसमें जो इथेरियम में जो होती है ना नॉन्स, वो इंक्रीमेंट होती है 1 by 1 जैसे जैसे ट्रांजेक्शन यूजर करता है। तो लेट्स से कि एलिस ने बॉब को 1 इथेरियम भेजे, ठीक है। अभी ये इथेरियम में बोल रहा हूं लेकिन डोंट कॉल इट इथेरियम, इट्स अ ईथर। इथेरियम इज अ प्रोटोकॉल। इथेरियम प्रोटोकॉल के अंदर ईथर नाम की करेंसी चलती है। जैसे मैंने बोला था बिटकॉइन प्रोटोकॉल के अंदर बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी चलती है, कॉइन चलता है। ऐसे ही इथेरियम नाम की जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर ईथर, हम लोग आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखेंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे वी विल कॉल ईथर, not a Ethereum. Okay, Ethereum is a blockchain inside the Ethereum, on the protocol of Ethereum, in the ecosystem of the Ethereum. There is a Ether coin which runs, which is the native currency of the Ethereum. Okay, let's get back to the point. So nonce is what? Nonce is nothing but the basically identifying the unit transaction. Let's say एलाइस ने बॉब को 1 इथेरियम भेजे, तो जब ये 1 ईथर भेजे गए तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है और ये नॉन्स के थ्रू उसको ना प्रॉपरली ये प्रोसेस करके इसको इंश्योर कर लिया जाता है कि ये ब्लॉक नंबर 1 में जब एलाइस वन बॉब को 1 इथेरियम भेजे थे तो सारा डेटा सेम है, डबल स्पेंडिंग ना हो, इसलिए क्या करा जाता है, नॉन्स की वैल्यू 1 रखी है यहाँ पर। अब जब वो अगली बार जब वो ट्रांजेक्शन करेगी तो नॉन्स की वैल्यू को 2 कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर नॉन्स का ये यूज होता है इथेरियम के अंदर। तो ये तुम लोगों को मतलब ज्यादा जानने का ऐसा है नहीं, ऊपर ऊपर से जान लो, क्योंकि मेनली क्या होता है कि हम लोग जो काम करने वाले हैं वो एज एन एप्लीकेशन डेवलपर काम करने वाले हैं। तो एप्लीकेशन ब्लॉकचेन डेवलपर वो ब्लॉकचेन डेवलपर होते हैं जो कोर का सिर्फ और सिर्फ नॉलेज रखते हैं, लेकिन कोर के बारे में वो कोडिंग वगैरह नहीं करते हैं।
बीटीसी, बीटीसी तो लाइक वी कॉल इट बिटकॉइन, एक्चुअली बीटीसी जो है वो उसका शॉर्ट या बोल सकते सिंबल है, सिंबल नॉट अ सिंबल, yeah you can say that कि like a symbol BTC, इथेरियम इज ETH, ओके सोलाना का SOL, तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन जब पूरा कॉइन का नाम लिया था सब बिटकॉइन, इससे इथेरियम, तो ईथर हम लोग बोलते हैं फाइन। उसके बाद इथेरियम का बैलेंस होता है एक्सटर्नल अकाउंट्स के अंदर, इथेरियम का बैलेंस होता है एक्सटर्नल अकाउंट्स के अंदर। स्टोरेज, स्टोरेज क्या होती है, स्टोरेज हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग जानेंगे तब हम लोग स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ के चलो कि नॉन्स होता है और एक इथेरियम ईथर होता है। नॉन्स का काम मैंने बता दिया तुमको कि वो रीप्ले अटैक से बचाता है, इसके बारे में अगर तुम्हें पढ़ना है तो यू कैन गो टू द, यू कैन रीड द एक्चुअल में इथेरियम का व्हाइट पेपर, जो काफी हद तक बताता है। और एक है इथेरियम का येलो पेपर, जो इथेरियम की कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है कि इथेरियम का मेनली जो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन वगैरह है जिनको थोड़ा इंटरेस्ट है जानने, वो इथेरियम का येलो पेपर भी पढ़ सकते हैं। इट्स जस्ट बिफोर द व्हाइट पेपर, और इट्स लाइक अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हैज गिवन इनटू दिस पेपर। और या तो नॉन्स हैज क्लियर इथेरियम बैलेंस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर वॉलेट है तो उसमें इथेरियम बैलेंस होगा। स्टोरेज का मैं अभी तुम लोगों को क्लियर करूंगा जब मैं बताऊंगा, बट इतना याद रखो कि स्टोरेज एक, नहीं स्टोरेज अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा, अभी के लिए बस याद रखो कि एक फील्ड होती है। ओके, okay, now let's get started for the Ethereum owned account. So Ethereum owned account, sorry, not a Ethereum owned account, it's a contract owned account. आज यार हेडिंग्स बहुत गलत हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सीएस भी बोला जाता है इनको। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होते हैं, देखो ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी, जितने भी जब तक तुम ये ब्लॉकचेन में जियोगे, ब्लॉकचेन में जब तक रहोगे ना, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट कोड ही, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही तुम्हारा साथ देगा। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और मैंने बताया कि इथेरियम अकाउंट होता है, इथेरियम अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, ये वो अकाउंट होता है, या इथेरियम अकाउंट ये बोल लो कि इथेरियम ओन्ड अकाउंट, या बोल लो कि सॉरी एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो वो होते हैं इथेरियम में, जो वॉलेट्स के थ्रू स्टोर किए जाते हैं। ओके, मीन्स कि जो वॉलेट हम लोग क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स वो होते हैं जो हम लोग जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसको ना एक आइडेंटिटी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन कर रहे हैं। सम काइंड ऑफ हम लोग एक एड्रेस या सम काइंड ऑफ हम लोग ये बोल सकते हो कि हाँ एड्रेस ही बोल लो, कि एक एड्रेस देते हैं या अकाउंट नंबर देते हैं कि देखो अगर हम लोगों को ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को एक्सेस करना पड़ा तो हम ये एड्रेस के थ्रू करेंगे। एड्रेस का मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, हैश जो होता है, जब कोई अकाउंट के थ्रू हम लोग किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसको एड्रेस बोलते हैं, अकाउंट नंबर नहीं बोलते। अगर जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि ये तुम्हारा 0xabc क्या है, तो हम अकाउंट नंबर नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे दिस इज माई अकाउंट एड्रेस। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि दिस इज लाइक से 0xc व्हाट, तो if that contract address is if that account number is of contract, then you will say कि okay this is the contract address। तो इसलिए अपने एड्रेस को तुम क्या बोलते हो, अकाउंट एड्रेस, लेकिन जब तुम कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट नंबर को बताते हो देन यू कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। इसमें होता है कि इफ द अकाउंट इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिस विल कंटेन द कोड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि ये अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं ना तुम लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बताता हूँ, उसके बाद आई विल टेल यू कि एक्सटर्नल अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना प्लीज, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ठीक है, पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद मैं तुम लोगों को डिफरेंस बताऊंगा कि कॉन्टैक्ट एड्रेस और जो एक्सटर्नली ओन्ड एड्रेस होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अकाउंट होता है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, पहले सबसे पहले हम समझते हैं। तो अगर मैं थ्योरी पढ़ूं तो ये लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम ऑन अ ब्लॉकचेन दैट ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेस एंड एग्जीक्यूट द terms of an agreement when predefined conditions are met without the need for the intermediaries. Of course, not a lot of theories, but yeah, little bit fancy words. और इसको एक एक करके तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ये पहले भी एग्जाम्पल देके बताया था, तो ये मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन तुम लोगों के लिए सिंपल कर दिया कि पहले तुम लोग यहाँ पर डेटा स्टोर करते थे, अब यहाँ पर क्या करोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब एक सिंपल सी बात है, कोड है जो लिखा गया है किसी लैंग्वेज में, वी डोंट नो व्हाट द लैंग्वेज इज, बट या करंटली वी नो कि कोई तो लैंग्वेज है लिखी गई है, वैसे तो सॉलिड यूज होती है, लेकिन लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस लेट्स जस्ट अज्यूम डेट कि यहाँ पे कोई एड्रेस कोई भी नहीं है, कोई भी लैंग्वेज नहीं है, बट ये समझो कि कोई कोड है जो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर जब हम लोग ट्रांजेक्शन रखते थे उसकी जगह हम लोग कोड रख रहे हैं।
अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से कि ये तुम्हारा एक पार्सल है, ओके, यू आर रनिंग वन लेट्स से शिपिंग कंपनी और कुरियर कंपनी। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तुम्हारे पास एक पैकेज है, वो पैकेज तुम लोग डिलीवरी बॉय को देते हो, और डिलीवरी बॉय क्या करता है, उसे अपनी डेस्टिनेशन या कहीं पे किसी ऑफिस पर या हाउस पर पहुंचा देता है, ठीक है। बट एक चीज याद रखो, जैसे मैंने तुम लोगों को उस दिन भी बताया था कि ये पैकेज है, ओके। अगर लेट्स से कि ये पैकेज को तुमको डिलीवर करना है और इस पैकेज के अंदर लेट्स से कोई ऐसी चीज है जो टेम्परेचर सेंसिटिव है। टेम्परेचर सेंसिटिव क्या ले सकते हैं, लेट्स से अभी मेरे दिमाग में तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो लेट्स से ठीक है आइस, ओके। तो मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आइस है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो मैंने कहा कि तुमको ना कुरियर बॉय या कुरियर ट्रक वट एवर इट इज, मैंने इनसे इनसे बोला कि भाई तुमको ये पार्सल है, इस पार्सल के अंदर आइस रखी हुई है, ठीक है। इस आइस को तुम्हें यहाँ पर जो है डिलीवर करना है। बट मैंने ये बोला कि आइस को जब तुम लोग डिलीवर करोगे तो तुम्हारे जो बैग का जो वो है टेम्परेचर, वो लेट से माइनस में होना चाहिए, ठीक है। लेट से मैंने कुछ भी बोल दिया, वैसे मैंने बोला -24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैंने बोला अगर तुम्हारे कोई भी तुम्हारे बैग का टेम्परेचर अगर एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर से ग्रेटर हुआ, तो लेट्स से कि मैंने बोला कि इस बैग का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -24 होना चाहिए, तभी ये बर्फ जो है सही तरीके से या आइस जो है सही तरीके से डिलीवर हो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैंने ये कंडीशन रखी कि -24 से अगर ये जरा सा भी ऊपर गया, ऊपर में जाने का मतलब ये नहीं है -25, मैंने मतलब ऐसा बोला कि अगर ये थोड़ा सा भी प्लस की साइड गया, यानी कि जीरो की साइड गया, तो वहीं पर ही ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम एक आइडियल केस देखो तो तुम बोलोगे कि अच्छा एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं आदित्य कि ये जो पर्सन है इसको बोल सकते हैं कि भाई तू टेम्परेचर चेक करता रहे, अगर वो टेम्परेचर -24 से नीचे चला गया, यानी कि -24 से बेसिकली ऊपर चला गया, यानी प्लस की साइड चला गया, तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब तुम इसे कैंसिल कर देना। बट यहाँ पर तुम लोगों की डिपेंडेंसी किस पर है, एक ह्यूमन पर, ओके। एक ह्यूमन पर है जिस पर तुम लोग ट्रस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि वो तुम्हें सही बता देगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारा ऑर्डर जो है वो गलत डिलीवर कर दे, यहाँ पर तुम्हारे तो शॉप का नाम खराब हो जाएगा। लेट्स से यू हैव अ वेरी गुड रेपुटेशन इन सेलिंग द आइस, और तुम्हारा तो अभी बिजनेस भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो अब तुम्हारा तो ऐसे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो तुमने कहा कि मैं इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोड में कर सकता हूँ। कोड अपनी बात से अगर मैंने कोड में लिख दिया तो वो चीज एग्जीक्यूट होगी, चाहे इधर की उधर हो जाए। एक बार को आदमी पलट सकता है, कोड नहीं पलटेगा, है ना। तो हमने ये बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग एक कोड लिखते हैं, उस कोड के अंदर हम लोग इफ और एल्स कंडीशन लगाते हैं, बस सिंपल, मैं बहुत सिंपल मैं समझा रहा हूँ, बहुत हाई लेवल पे। मैंने उस कोड को लिखा, वो कोड को किसी लैंग्वेज में लिखा जो लैंग्वेज इस इथेरियम ब्लॉकचेन एक्सेप्ट करती है, उस लैंग्वेज में मैंने ये कोड लिखा, और उस लैंग्वेज में मैंने सिंपल सा इफ एल्स कंडीशन लगाया कि भैया इफ जो टेम्परेचर है आइस का अगर वो ग्रेटर देन या लेट्स से कि अगर वो इक्वल टू है, जब तक डिलीवरी हो रही है -24 डिग्री तक, अगर वो डिलीवर हो जाता है और जब ये कंडीशन बार बार रन करती रहेगी, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इससे जरा सा भी लेस हुआ या हाई हुआ, देखो लेस हो सकता है, तुम कह सकते हो, अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन तुम लगा सकते हो एल्स इफ करके, मैं बहुत हाई लेवल पर समझा रहा हूँ कि कैसे होगा। तो अगर ये 24 डिग्री से अगर थोड़ा सा भी ऊपर गया, तो जब तक ये 24 डिग्री के इक्वल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ये 24 डिग्री से ऊपर गया तो वहीं पर ही क्या है, ऑर्डर कैंसिल कर देना, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहां पर तुमने ये सब तो कर लिया, लेकिन तुम ये बोलोगे आदित्य ठीक है, अगर ये आइस इस डिलीवरी बॉय ने सक्सेसफुली यहाँ ट्रांसफर कर दी, उसके बाद जो पैसा है वो कैसे आएगा, वो तो इस अब वो जो जिसको आइस मिली वो तो ये कहेगा डिलीवरी बॉय से कि ये लो पैसा, जैसे तुम लोग अमेजोन में करते हो। अगर मैं बहुत जो लोग ऑनलाइन पे नहीं करते, सीओडी मंगाते हो, तो वो क्या करते हो, तुम लोग उस पर्सन को देते हो और वो पर्सन जाके वहां पे सबमिट कर देता है, बट हाईली चांसेस है कि कुछ इशू हो जाए, है ना, क्योंकि एट द एंड वो ह्यूमन है। तो अभी तुम लोग बोलोगे कि वो भी सही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, आपको दिखता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, तो आपने कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यूज है वो रहते हैं। तो ब्लॉकचेन क्या करती है, वही करती है, ट्रस्ट इशू को बिल्कुल आपको खत्म कर दिया, आपको कहती है आपको बिल्कुल निश्चित हो जाओ। तो आप ये बोलोगे कि आइस तो ऑर्डर हो गई, जब इसको अगर पेमेंट करना होगा तो वो पेमेंट डिलीवरी बॉय को करेगा। मैंने बोला वो भी नहीं डिलीवरी बॉय को करेगा। मैंने कहा आप क्या करोगे, ये सारा का सारा जो पेमेंट है वो आप करोगे क्रिप्टो में, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी जिसे बोलते हैं, इथेरियम में, क्योंकि आप ये सारा कोड कहां चला रहे हो, इथेरियम में। तो आपने ये बोला
कि मैं सारा का सारा क्रिप्टो में करूंगा। मैंने ये बोला कि मैंने ये पैकेज जो है डिलीवरी बॉय को दिया, डिलीवरी बॉय ने यहाँ से जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करना स्टार्ट किया। जैसे यहाँ से ऑर्डर इनिशिएट हुआ, इसके यहाँ से ऑर्डर इनिशिएट हुआ, इनिशिएट होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, ठीक है। अब वो कंटिन्यूअसली जो है कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं इस बॉक्स में, जो कंटिन्यूअसली डेटा जो है वो ब्लॉकचेन को भेज रहे हैं। ये देखो, ये अभी ब्लॉकचेन, अभी ये कंटिन्यूअसली इस पैकेट या इस बैग का डेटा इतना है, तो वो ब्लॉकचेन में जो कोड है, जो कोड है जो किसी लैंग्वेज हमने रिटर्न किया हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। वो चेक कर रहा है कि बॉक्स का टेम्परेचर 24 डिग्री -24 डिग्री मेंटेन है कि नहीं है। अगर ये -24 डिग्री मेंटेन रहता है, कब तक, जब तक कि ये आइस डिलीवर ना हो जाए। अगर ये हो गया, लेट्स से कि ये डिलीवरी बॉय यहाँ तक पहुंचा घर तक, इसने बोला कि ये लो आपकी आइस, और वो करेक्ट -24 में थी। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर पर्सन है जो कस्टमर है, वो ये डन कर देगा कि मुझे ऑर्डर रिसीव हो चुका है। यहाँ से ये भी डन कर देगा कि ऑर्डर रिसीव हो चुका है, जैसे अमेजोन में होता है। द मोमेंट व्हेन दे मार्क दिस ऑर्डर डिलीवर्ड, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जैसे ही मार्क डिलीवर्ड होगा, तो यहाँ पे अगेन एक कुछ कंडीशन लगी होगी कि अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अब ये मैं बहुत हाई लेवल में बता रहा हूँ बोल के, इसको आप कोडिंग में तुम लोगों को पता है कि वो कोडिंग में जब हम लोग फाइल्स लिखते हैं, कोड करते हैं, तो कैसे डिजाइन करना है सर को, बस मैं हाई लेवल में बता रहा हूँ कि अगर वो डिलीवर हो जाता है प्रोडक्ट, ऑटोमेटिकली जो ये फंड्स हैं इसको ट्रांसफर कर दो किसके पास, शॉपकीपर के पास। तो अब तुम लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो फंड्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुए, तो ये हुए कहां से आदित्य, ये कहीं पर रखे गए थे क्या? लेट्स से कि ये जो आइस थी वो थी वन, किसी मिडिल पार्टी को दिए थे, या फिर वन इथेरियम जो डायरेक्ट कटे जब कस्टमर ने ऑर्डर रिसीव किया, तो उसने कहां से, उसने डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट से कटे? नहीं। उसके वॉलेट से कटे? नहीं, डायरेक्टली नहीं कटे। ओके, ठीक है, मैं समझ गया। मतलब कि वन इथेरियम ना, वन इथेरियम आपने कहीं, या तो आप देखो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, तुम कह सकते हो क्या आदित्य, आप, तुमने ये दो चीजें करी होगी। या तो तुमने ये मनी को, जो तुम्हें कस्टमर ने जो सेलर को देना है, वो मनी को या तो तुमने कहीं किसी थर्ड पार्टी पर रख दिया होगा, या फिर तुमने डायरेक्टली वॉलेट से वो पैसा काट लिया होगा, पहले से ही परमिशन ले ली होगी वो यूजर की। तो इनमें से पहला वाला गलत है, मतलब दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है कि मैंने ये जो वन इथेरियम, लेट्स से कि जो कॉस्ट थी आइस की, जब कस्टमर ने जब ये ऑर्डर प्लेस किया था, जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने उससे तभी बोला कि आप अपने जो वन इथेरियम है ना उसको डिपॉजिट कर दो। कहां पर डिपॉजिट कर दो? यहाँ पर मिडिल मैन कौन है? अब तक अगर समझ गए हो तो थोड़ा बहुत, यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो कुछ मिडिल जो चीज है, मिडिल थिंग है, उस पर डिपेंड कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, ये कोड पर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब इट इज नथिंग बट द कोड, इस कोड पे कर रहा है। तो हमने ये बोला है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये दिख रहा है ना ये पर्चा सा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसके पास वन इथेरियम आप जमा कर दो ना, आप मेरे पास करो ना, ये डिलीवरी बॉय के पास करो ना, ये सेलर के पास करो। मैं कहता हूं आप एक कोड है, उस कोड को आप ये पैसा दे दो। अब आप कोड पे तो भरोसा करते हो ना कि कोड तो बेईमानी नहीं करेगा, कोड चीटिंग नहीं करेगा। तो आपने बोला कि मैं कोड को पैसा दे देता हूं, जैसे ही वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो अपने अकाउंट से, जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो अपने अकाउंट से पैसा निकाल के किसको ट्रांसफर कर देगा, किस पर, शॉपकीपर को। अब यहां पे हम लोगों ने दो चीजें अचीव करी। एक बार के लिए सोचो कि ये आइस जो है ये कस्टमर के पास पहुंच गई और कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, कस्टमर ने चीटिंग कर ली, कस्टमर ने बोला मैं नहीं दूंगा पैसा, डिलीवर तो हो गया लेकिन उसने बोला मैं नहीं दूंगा पैसा, तब क्या करोगे? तब शॉपकीपर का तो नुकसान हो गया। या फिर ऐसा हुआ कि शॉपकीपर ने ये बोला कि अच्छा, या फिर ऐसा हुआ कि कस्टमर ने वन इथेरियम डिपॉजिट कर दिए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन शॉपकीपर जो क्या करता है, शॉपकीपर ने जो बड़ी से, शॉपकीपर का जो ये आइस वाला, आइस का पैकेट है, वो उसने नहीं करा ट्रांसफर, ठीक है, वो उसने या कुछ गड़बड़ी कर दी या उसने ट्रांसफर ही नहीं किया। केस वन लेके चलते हैं। देखो, केस वन क्या हो सकता है कि कस्टमर पैसा ना दे, ठीक है, कस्टमर मनी नहीं देता है। केस टू क्या हो सकता है कि सेलर ने वो आइटम ही नहीं दिया हो, वो आइटम अभी तक डिलीवर नहीं किया हो। केस थ्री क्या हो सकता है? केस थ्री ये हो सकता है, अच्छा केस थ्री में भी तुम लोगों को खुद बता रहा हूं। देखो, पहला तो मैं केस क्लियर हो गया कि कस्टमर अगर पैसा नहीं देगा, तो उस टाइम पे क्या कर लिया मैंने, मैंने वो वन इथेरियम ऑलरेडी उससे लेके एक कॉन्ट्रैक्ट को दे दिए कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट, ये कोड है, इस कोड में मैंने वन इथेरियम रख दिए। ये जो वन इथेरियम रखे गए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंट को बोला गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस।
अब आया समझ में? जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, अभी इसका बहुत यूज होगा जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी पढ़ेंगे लैंग्वेज। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का पैसा रखा जाए, मतलब जहां पर बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने प्रोटोकॉल में वो पैसा रखता है। अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं तुम लोगों को लाइव जाके बताऊंगा कि किस किस कॉन्ट्रैक्ट कोड में कितना कितना पैसा रखा रहता है। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो किसी के साथ, आप डायरेक्टली उसके साथ नहीं जुड़ते हो। जैसे अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, अगर उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के साथ अगर आपको इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आप, ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि जैसे अगर मान लो आप अमेजोन से कर रहे हो, तो अमेजोन का अपना कोई अकाउंट है, कोई वो है, वहां पर डायरेक्ट पैसा जा रहा है। अगर अब यही अमेजोन अगर ब्लॉकचेन पर होता तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेता, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लेता और वहीं से सारी चीजें ट्रांसफर होती। सेम थिंग इट इज हैपनिंग हियर कि केस वन में अगर कस्टमर पैसा नहीं देता है, तो अगर नहीं देता है तो कोई सवाल ही नहीं बढ़ता, क्योंकि जैसे ही उसने ऑर्डर प्लेस किया, हमने बोला कि आप 1 इथेरियम जो है वो आप जमा करा दो कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो गया अच्छे से, यानी कि जो कंडीशन थी कि आपका जो टेम्परेचर है अगर वो -24 तक रहा, तो आपका ऑटोमेटिकली इधर से पैसा कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर भी खुश, सेलर भी खुश। लेकिन अगर मान के चलो सेलर ने कुछ बदतमीजी कर दी, सेलर ने बोला कि नहीं भाई मैं तो चीटिंग करूंगा, मैं ठहरा बेईमान आदमी, मैंने क्या करा, मैंने कुछ हैक वैक लगा के मैंने बोला कि अरे ठीक है, ले जाओ, मतलब इसको ट्रांसफर कर दो, और वो सामान ढंग से नहीं पहुंचा, तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट वो एल्स में चला जाएगा, एल्स कंडीशन में, कि क्योंकि प्रोडक्ट ढंग से रिसीव ही नहीं हुआ, जो कि टेम्परेचर जा रहा था वो टेम्परेचर कहीं ना कहीं हिल गया, तो उस केस में क्या होगा? ये 1 इथेरियम इनको रिटर्न कर जाएंगे, कोई अब ऑटोमेटिकली, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं आ रहा। अब इसमें तीसरी चीज क्या हो सकती है, जो मैंने केस 3 बोला, कि हो सकता है कि सेलर ये बोल दे कि, जैसे सेलर बोल दे कि ठीक है, लेकिन सेकंड केस में एक चीज समझो, कि सेकंड केस में एक चीज हुई है कि कस्टमर को पैसा तो मिल गया, लेकिन उसका जो टाइम गया, और ऊपर से सेलर अगर ये हर बार ऐसा कर रहा है तो क्या करोगे? सेंट्रलाइज सर्वर तो है नहीं कि किसी के पास जाके शिकायत कर दो। अमेजोन में जाके आप जाके, जैसे आप रिव्यूज रिव्यूज तो चलो दे सकते हो, लेकिन अमेजोन में जाके आप बोल देते हो कि ये जो सेलर है, ये सेलर सही नहीं है। कई बार एक सेलर पे एक्शन ले लिया जाता है, सेलर को डिस्कार्ड कर, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सेलर और कस्टमर दोनों मिलकर फंड्स जमा करते हैं, कोई एक पार्टी की तरफ से फंड्स जमा नहीं होते। तो अगर सेलर उस ब्लॉकचेन नेटवर्क में आना चाहता है, तो वो अपने कुछ फंड्स जमा करेगा, इस चीज को बताने के लिए कि अगर कल को कुछ वो ऊट पटांग करता है चीजें, तो उसके जो फंड्स कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए हैं वो रिड्यूस होते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ही गंदी चल रही है, वो बिल्कुल ही बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रहा है, उसके सारा जो फंड्स है वो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सेलर ये अथॉरिटी, यानी कि सेलर ये प्रूफ देता है कि देखो मैं भी अगर चीटिंग करूंगा यहाँ पर, तो मेरे भी जो अकाउंट, जो पैसे लगे हुए हैं वो भी डूबेंगे। डिसेंट्रलाइज मतलब इसकी सबसे बढ़िया बात यह है कि ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इट इज लाइक कि आपको अगर कस्टमर का टाइम जा रहा है, तो आपका भी कुछ ना कुछ नुकसान होना चाहिए, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसी एक के कहने से नहीं चलता है, इट्स अ कम्युनिटी। ये हर किसी के अपने अपने एफर्ट से एक सिस्टम बनता है, उसके बेसिस पे चलता है। जस्ट एन इमेजिनरी केस, इफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फेल टू सेंड मनी देम, कैसे फेल होगा? अनटिल एंड अनलेस अगर आप कोड सही नहीं लिखोगे तो फेल कैसे होगा? थोड़ा सोच के देखो। मैं ये कह दूं कि आपका जो कोड है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि देखो फेल होने के चांसेस क्या है? या तो आपका सर्वर डाउन हो गया, ब्लॉकचेन का सर्वर कभी डाउन हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि इट्स अ पीयर टू पीयर। आप बोलो कि शायद हो सकता है कि वॉलेट में फंड्स नहीं हो, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड्स नहीं हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड्स होंगे तभी ट्रांजेक्शन होगा, तो ये सारे चेक्स लगाने पड़ते हैं आपको। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो ना, तो आप जैसे कैसे कॉर्नर केसेस और एज केसेस कवर करते हो, कि मेरे वॉलेट्स में फंड होंगे तभी ट्रांसफर होगा, सामने वाले का वॉलेट एड्रेस, अकाउंट एड्रेस अगर अगर एक्चुअल में वैलिड होगा तो ही मैं ट्रांसफर, तो ये सारे आप चेक्स लगाते हो, आप बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट केस लिखते हो, उसके बाद ही यू विल गो टू द मेन ब्लॉकचेन। और उसके पहले भी आप एक टेस्ट ब्लॉकचेन में चेक करते हो सारी चीजें। कहीं से कहीं तक फेलियर के चांसेस ही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो फंड्स खत्म नहीं हो जाते उस। ओके, अब प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ लेंगे, हाँ, लेकिन लगभग ऐसी बात होती है। तो ये होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ वो समझ आया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में क्या हुआ वो समझ आया तुमको? ये बताओ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या होता है? देखो, दो टाइप के अकाउंट एड्रेस होते हैं, ईओए होता है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एड्रेस होता है। ईओए अकाउंट्स होते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जैसे तुम्हारा वॉलेट्स हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको हैंडल करते हैं, उनसे रिलेटेड फंड्स हैंडल करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक एक चीज पढ़ो, तुम लोगों को अब समझ आएगा।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम. मैंने क्या बोला अभी? कोई भी मिडिल मैन नहीं है, खुद सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है ऑन अ ब्लॉकचेन दैट ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेस, जो ऑटोमेटिकली ये इन्फोर्स करता है एंड एग्जीक्यूट करता है किसको? एक एग्रीमेंट को जो कि प्री डिफाइंड है, कंडीशंस जो प्री डिफाइंड कंडीशंस पर मेट कर जाता है. मतलब मैंने जहां पर कंडीशंस डिफाइन करी, मैंने यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करी कि इफ अगर आइस का टेम्परेचर ग्रेटर देन हुआ तो ये क्या हुआ? एक एग्रीमेंट था जो कि कस्टमर और मेरे बीच हुआ. और ये एग्रीमेंट तुम कहोगे आदित्य ये विजिबल होगा सबको? ये सबको विजिबल होगा क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड आप कहीं पर भी देख सकते हो, किसी के पास भी देख सकते हो अगर वो वेरीफाई है. तो जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड जब आप ब्लॉकचेन पे जाके वेरीफाई करते हो तो आप अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट का कोड वहां पर दिखाते हो. कि कल को अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो कि मेरे को इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं तो वो जाके उस वेबसाइट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड देख सकता है, पढ़ सकता है. अगर उसको कहीं पे कुछ भी चीज वल्नरेबल लगती है तो इट्स हिज चॉइस और हर चॉइस, राइट, कि उसको करना है कि नहीं करना. बट यहां पर क्या हुआ? मैंने क्या बोला? द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट enforces and execute the terms of an agreement when predefined conditions are met. अगर ये predefined conditions met होती हैं तो वहां पर जो एग्रीमेंट हुआ है, जो टर्म्स डिस्कस हुई है, वो एग्जीक्यूट होती है विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडियरीज और इंटरमीडिएट पर्सन. ओके, ओके, इट्स क्लियर. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है सबको? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज नहीं बताई, डिफरेंस समझ लो, डिफरेंस क्या होता है. देखो भैया ये डिफरेंस है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बता ही चुका, 2 स्लाइड्स मैंने इसी एग्जांपल में कवर कर दिए. कौन सा मैसेज है? विशाल, लाइक वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑफ चेन ना, उसके लिए मैं अभी थोड़ा सा बात नहीं करना चाहता. वो थोड़ा सा तुम पूछ रहे हो, मैं इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑफ चेन डेटा लेने के लिए बहुत सारे अदर अदर प्लेटफॉर्म्स है. चेन लिंक के बारे में तुम पढ़ सकते हो, वो ऑफ चेन डेटा तुम्हें प्रोवाइड कराता है कई बार. ठीक है, ओरिकल आ गया. ओरिकल इज ऑल्सो यूजिंग द डीबी द ब्लॉकचेन. तो वहां पे कई बार होता है. तो वहां से लाइक यू कैन गेट द ऑफ चेन डेटा. आई वर्कड ऑन द ऑफ चेन डेटा, आई एक्सेस द ऑफ चेन डेटा. यू कैन जस्ट लॉग इनटू द चेन लिंक. ठीक है, तो चेन लिंक मैंने बहुत यूज किया हुआ है टाइमिंग को लेकर. डायनेमिक एनएफटीज जब मैं बनाता था, अभी भी बनाते हैं कंपनीज में, तो वी गेट टू नो. ऑरिकल से ऑरिकल जाके तुम देख सकते हो, तो यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट. ओके, तो इसलिए फाइन. लेट्स गेट्स गो टू द हियर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ओके, ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो तुम थोड़ा पढ़ सकते हो कि डिफरेंस क्या क्या होता है एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में. एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट जो होते हैं उनके पास प्राइवेट की होती है. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो होते हैं उनके पास कोई प्राइवेट की नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होते हैं कोड के थ्रू. उनका कोई ऐसा नहीं होता कि आप बोलो कि ये अकाउंट है तो उसकी प्राइवेट की नहीं है, उसका कोई प्राइवेट की नहीं होता. जो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है, मतलब जो आपके वॉलेट के अकाउंट्स हैं, वो यूजर्स यूजर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, ये कोड के थ्रू मैनेज किया जाता है. क्रिएशन जो होता है, ये जनरेट होता है, तो ये कब जनरेट होता है? जैसे आपने कभी वॉलेट बनाया, तो वॉलेट आपने क्रिएट किया, तो उसके अंदर आपके देखा था हम लोगों ने जब पिछली बार मेटामास्क वॉलेट बनाया था, तो उसमें आपके अकाउंट पहले से ही एक क्रिएट हो चुका था. उसमें आपकी प्राइवेट की क्रिएट हो चुकी थी, पब्लिक की ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी थी. बट जब आप कॉन्टेक्ट एड्रेस की बात करते हो तो ये तभी क्रिएट होता है जब आप डिप्लॉय करते हो उसको. जैसे हम लोग जब कोड डिप्लॉय करते हैं ना मेन नेट पे, सॉरी, डिप्लॉयमेंट तो तुम लोगों को पता होगा ना. जैसे हम लोग एडब्ल्यूएस पे डालते हैं तो हम लोग बोलते नहीं है कि अच्छा इसको कोड को डिप्लॉय करना है. तो जब मेन नेटवर्क पे जब ये जाता है, सर्वर पे जाता है, तो वो वहां पे तुम लोग सेंट्रलाइज में क्या बोलते हो? सर्वर बोलते हो ना. एडब्ल्यूएस हो गया, जीसीपी हो गया, वहां पर तुम लोग मेन नेट बोलते हो, मतलब मेन नेटवर्क बोलते हो, या डिप्लॉय प्रोडक्शन बोलते हैं हम लोग, राइट. तो वो यहाँ पे भी प्रोडक्शन बोला जाता है, लेकिन काफी हद तक तुम लोगों को मेन नेट सुनाई देगा. तो मेन नेट मतलब कि एक्चुअल वाला जो प्रोडक्शन है वही तुम यूज करते हो वेब 2 में, वही सेम. और टेस्ट नेट मतलब कि जहां पर तुम लोग, वो मेन नेट जैसे ही होता है. जैसे मैं तुमसे कहूंगी मैं एडब्ल्यूएस जैसे ही कोई सर्वर बना देता हूँ, जैसे नेटलीफाई वगैरह हो गया ना तुम लोगों के टेस्टिंग के लिए. बट वो लोग एक्चुअल में जैसे तुम लोगों को बहुत कस्टमाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराते, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर डोमेन एंड ऑल. सेम काइंड ऑफ थिंग, मतलब नॉट अ वेरी सिमिलर, but you can take yeah, Versal, you can take it. Versal is also, take an example for testings and all. फ्री में जो है. उसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो
इथेरियम में जाती है, ईथर में जाती है, क्योंकि हम लोग इथेरियम में है, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। डज नॉट कंटेन कोड, कंटेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड। देखो ईओ जो है वो कोड कंटेन नहीं करता है, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट कोड अकाउंट जो है कोड कंटेन करते हैं, ठीक है। फंक्शनैलिटी सेंड एंड रिसीव ईथ कैन एग्जीक्यूट कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि वॉलेट के जो कॉन्ट्रैक्ट, वॉलेट के जो अकाउंट एड्रेसेस हैं वो खाली की खाली सिर्फ सेंड और रिसीव कर सकते हैं। अगर मैं मेटामास्क में बोलूँ कि तुम क्या कर सकते हो, तो तुम बोलोगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेंड रिसीव कर सकता हूँ। मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या कर सकते हो, फंक्शन रन कर सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो जहां पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड जिक्र होता है, इसका मतलब सीधा दिमाग में हिट करना चाहिए, इट्स समथिंग रिलेटेड टू द कोड। तो ऐसे करके लाइक यू हैव द दिस एग्जांपल यूजेस इज वॉलेट्स यूजर अकाउंट। तो ये एक एक करके तुम लोग पढ़ सकते हो, मैंने ऐड तो कर ही दी है। यू कैन जस्ट गो विद दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दैट? Why weren't a smart contract introduced in Bitcoin? Yeah, this is very important. Sometimes like अगर तुम नॉर्मल डिस्कशन भी कर रहे हो किसी के साथ पहली बार, तो कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या कोड को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया था, सतोशी नाकामोटो ने ऐसा क्यों किया? देखो सबसे पहले तो जो उनका पहला जो मोटिव था वो था डिजाइन, डिजाइन एंड सिंप्लिसिटी। डिजाइन जो करा गया था ब्लॉकचेन को, वो बहुत जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी, वो बिटकॉइन को जो डिजाइन किया गया था बहुत सिंप्लिसिटी के साथ किया गया था। और उनका जो मेन जो मोटिव था वो ये था कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ डिजिटल क्रिप्टो, एज अ डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी हम लोगों को लॉन्च करना। उस टाइम पर ऐसा कोई ये नहीं था कि कोड करना, ये तो बाद में अपग्रेड हुए हैं चीजें, है ना। जैसे इथेरियम आया तो लोगों ने सोचा कि अच्छा ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब डिजाइन एंड सिंप्लिसिटी जो था वो वहां पर फिक्स था कि कोई ज्यादा एक एक्स्ट्रा फील्ड्स को ऐड नहीं करनी है। डेवलपर इंटेंट वही आ जाता है कि सतोशी नाकामोटो का जो इंटेंशन थी बिहाइंड दी बिटकॉइन, वो यही थी कि एक ऐसी करेंसी को लॉन्च करना जो किसी के थ्रू भी किसी के थ्रू भी वो एक्सेस, मतलब एक्चुअली में वो कंट्रोल ना करी जाए, इससे डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। इट्स नॉट अ सेंट्रलाइज करेंसी किसी के साथ। वो क्या बोलते हैं, और उसको मैं वर्ड का नाम भूल रहा हूँ, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए उसकी प्राइस अकॉर्डिंग टू द सेंट्रलाइज पर्सन और सेंट्रलाइज अथॉरिटी। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉब्लम ऑफ लूप्स। बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में आप लूप्स रन नहीं कर सकते, आप लूप नहीं लगा सकते, आप फॉर लूप, वाइल लूप, इन लूप का यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि होता ये है कि, और यही रीजन है कि आगे अभी थोड़ी देर में हम लोग गैस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि गैस प्राइस क्या होती है। लेकिन ये जो रीजन है वो रीजन यही है कि सतोशी नाकामोटो ने लूप्स नहीं रखे बिटकॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन, पहली बात तो मैं तुम लोगों को बोला कि वो कभी ऐसी बनी नहीं थी कि वो कोड के लिए बनी हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी के लिए बनी थी। और जब भी कोई लूप्स ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कोई लूप्स ब्लॉकचेन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो सबसे बड़ा जो है वो प्रॉब्लम ये बनती है कि अगर मान के चलो कि किसी ने आपकी ब्लॉकचेन में इनफाइनाइट लूप लगा दिया, ओके, अगर किसी ने आपकी ब्लॉकचेन में इनफाइनाइट लूप लगा दिया, तो क्योंकि एक तो ये सेंट्रलाइज नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को स्टॉप कर सको। ये डिसेंट्रलाइज है, न जाने कितने पीयर टू पीयर नोड्स के पास चल रही होगी ये प्रोसेस, और ये चलती जा रही है चलती जा रही है। तो ये क्या करेगा, इवेंचुअली जो नेटवर्क है उसको डाउन कर देगा, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ऑलमोस्ट ये चीजें डाउन हो जाएगी। क्योंकि सोचो ना कि इनफाइनाइट लूप चल रहा है सारे सर्वर्स पर और उसका कोई एंड ही नहीं है। इवन आप जब माइनिंग करते हो, कुछ चीज करते हो, तो उसका कुछ एंड होता है। ऐसी कुछ चीज आपने चला दी जो एंड हो ही नहीं रही है, तो वो एट दी एंड वो सर्वर को डाउन करेगी, क्योंकि ये पीयर टू पीयर है तो ये रेप्लिकेट होती चली जाएगी सबसे ज्यादा। तो इसलिए सतोशी नाकामोटो ने क्या करा, लूप का कॉन्सेप्ट रखा ही नहीं बिटकॉइन में। और जब अपन कोडिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लूप की जरूरत पड़ती है ना। विदाउट लूप बहुत मुश्किल हो जाती है कई चीजें करना, तो कई बार हमें लूप की जरूरत पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ लूप थी, इसलिए इथेरियम में ना लूप का कॉन्सेप्ट लाया गया। अभी अब ये लूप के कॉन्सेप्ट पे ही पूरी गैस प्राइस बनी हुई है। जो गैस प्राइस का कॉन्सेप्ट है ना, कि इतना गैस लगता है, इथेरियम इतनी महंगी है, ये है वो है फलाना ढिकाना है, हम लोगों को अगर ब्लॉकचेन करनी है इथेरियम में तो पैसा चाहिए, ये इतना महंगा है। क्यों है वो? इसलिए है, मैं ये सबसे मेन रीजन है इनफाइनाइट लूप। अभी मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा कि ये क्यों है। उसके बाद है स्क्रिप्ट लिमिटेशन। स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी ब्लॉकचेन में, वो लिखी जाती थी ब्लॉकचेन वो बिटकॉइन में बिटकॉइन स्क्रिप्ट के थ्रू। उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी, उसमें एक बिटकॉइन स्क्रिप्ट करके एक स्क्रिप्ट थी जो रन करते थे। तो अगर किसी को कंट्रीब्यूशन करना भी है तो वो ये पहले बिटकॉइन स्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज रखे, देन दे कैन कंट्रीब्यूट इन द बिटकॉइन। क्योंकि ओपन सोर्स है तो एनीवन कैन कम, बट या लाइक दिस इज द वे दैट
हाउ दिस पर्सन सतोशी नाकामोटो हैज थिंक अबाउट दिस होल सिस्टम. तो उन्होंने डिजाइन सिंप्लिसिटी, डेवलपर इंटेंट था एक तो. मेन जो रीजन था वो था कि प्रॉब्लम ऑफ लूप्स, क्योंकि लूप्स नहीं है तो कोई चारा ही नहीं है, तो इसलिए. और स्क्रिप्ट लिमिटेशन भी थी. तो ये दो जो है वो मेजर है. ये दो यू कैन से कि ठीक है, मतलब उनका जो फोकस था वो नहीं था. इथेरियम का जो विटालिक ब्यूटेरिन का फोकस था वो ये था कि ऑन द टॉप ऑफ बिटकॉइन कुछ ऐसी ब्लॉकचेन लाई जाए. अच्छा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि होगा क्या. देखो, इससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ. हाँ. एक सेकंड में पानी पी लूं. देखो, मैं इस चीज में ना तुम लोगों को ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता हूँ इथेरियम पे, क्योंकि इथेरियम जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकल पे, जितनी जल्दी हम प्रैक्टिकल पे मूव कर जाए ना, उतना ज्यादा अच्छा है. क्योंकि मैं ना बिटकॉइन मैंने तुम्हें इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था कि मैं इथेरियम में बहुत फास्ट चलूंगा. क्यों? क्योंकि इथेरियम में मुझे मुझे पढ़ानी ही नहीं है थ्योरी, मुझे इथेरियम में डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे ले जाना है. तो उससे पहले जो एसेंशियल चीजें हैं इथेरियम में प्रैक्टिकल के लाने से पहले, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जिससे तुम लोग क्या आएगी समझ लो, है ना. अब चलो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, ईवीएम का. ठीक है, व्हाट इज ईवीएम? इथेरियम वर्चुअल मशीन. देखो, ईवीएम तुम लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा कि ईवीएम 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 क्या है. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है. इट्स अ इथेरियम वर्चुअल मशीन. इथेरियम समझ में भी कम आ रहा है. इथेरियम अभी इसलिए समझ कम आ रहा है ना, क्योंकि जो अभी तक की क्या है ना, बेसिक पार्ट चल रहा है. अब तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा तुम लोगों को समझ आएगा कि इथेरियम क्या है. अभी तक थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मल पार्ट चल रहा था. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अच्छा था, जो तुम लोगों को समझ आना चाहिए था. किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, तो पूछ लो. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, तब मैं और समझाऊंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं भी ज्यादा थ्रो कर नहीं रहा हूँ लाइट उस पर, और क्योंकि इसको एट दी एंड हमें चालू तो करना ही है कोडिंग के लिए, तो हम लोग उस टाइम करेंगे. लेकिन ठीक है, चलो. देखो, ईवीएम क्या होता है, एक बात समझो. अब ईवीएम क्या होता है? ईवीएम होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, इट्स इथेरियम वर्चुअल मशीन. ओके, सॉरी, माय बैड. तो इथेरियम वर्चुअल मशीन इज व्हाट ईवीएम. इसको ऐसा मानो, वर्चुअल मशीन तुमने सुना है? वर्चुअल मशीन, तुम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स सुना होगा. तुम लोगों से हमने ना कहीं तो हैकिंग वैकिंग मैंने तो बहुत की है कॉलेज टाइम पर. वो काली लिनक्स वगैरह मैंने चलाई है, और उबंटू चलाया है. ठीक है. तो वर्चुअल बॉक्स में हम लोग चलाते थे. तो हम लोग क्या सोचते थे कि भाई हम लोगों का जो कंप्यूटर है वो अभी तक ना VMware हो गया. हाँ. तो अभी तक हम लोग बोलते थे कि हमारा कंप्यूटर जैसे लिनक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो हम लोग क्या बोलते थे, अरे एक काम करना, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर ले ओरेकल का. तो अब एक चीज और तुम लोगों ने सुनी होगी, कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो एथिकल हैकर हैं, वो मुझे बताते थे कि सबसे सिक्योर तरीका उनके पास पता है, जब भी क्योंकि वो हैकर है तो उनके पास कई सारी चीजें ऐसी आती रहती हैं जो डायरेक्टली वो अपने सिस्टम पे नहीं चला सकते. तो उसके लिए वो क्या करते थे, वो मुझे बताता था कि वो क्या करता था, उसके पास ना एक सिस्टम रहता था. वो सिस्टम पे ना उसका हमेशा एक वर्चुअल बॉक्स चलता रहता था, मतलब उस पर कुछ काम रहता था. तो वो क्या करता था, वो सेपरेट एक चीजों, मतलब वो क्या करता था, सेपरेट एक मशीन बनाता था उस वर्चुअल बॉक्स में, और उस पर वो रन करता था. तो अगर कल को कोई मालवेयर आ भी गया, या कल को कोई कुछ भी चीज आ भी गई, या कोई भी चीज ऐसा वायरस आ गया, तो वो पर्टिकुलर उसी सिस्टम को हार्म करेगा, ना कि उसके मेन सिस्टम को हार्म करेगा, क्योंकि वहां से एक वर्चुअल मशीन आपको मिल जाती है. राइट. तो वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट इसलिए इथेरियम में लाया गया कि लेट्स से कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने क्या बोला था अभी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कुछ नहीं है, वो भी एक ब्लॉक में डेटा की तरह स्टोर हो रहा है. तो जब ब्लॉक रेप्लीकेट्स हो रहे हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी रेप्लीकेट्स हो रहे हैं. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी सबके पास जा रहा है. तो लेट्स से कि ये जो पर्टिकुलर माइनर है, और ये सेट से पीसी है, पीसी ये कोई नोड है, तो नोड ने क्या करा, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया अपने ब्लॉक में. ओके. जैसे ही वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो ऐड किया, तो ये ड्यू टू द पीयर टू पीयर नेटवर्क एल्गोरिथम से क्या करेगा, ये सारे जो पीयर टू पीयर है, जितने भी नोड्स है, उनके पास ये पहुंच जाएगा. यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगेन जो हम बोलते हैं ना, इम्यूटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, ये जो भारी भरकम वर्ड्स हैं, ये तो अब तुम लोग फैमिलियर हो चुके होंगे. तो ये क्या हो गया, ये सब जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गए. करेक्ट. इतनी चीज समझ में आ गई तुम लोगों को? जैसे ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, वैसे क्या हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉक में फेंका, और वो ब्लॉक को हम लोगों ने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब इधर एक प्रॉब्लम है, इधर एक प्रॉब्लम ये है कि एक बार सोच के देखो कि हैकर भाई ने कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो कुछ वल्नेबल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, कुछ वल्नेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ हैकेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, वो डाल दिया, या कोई, क्योंकि स्क्रिप्ट है ना, मालवेयर देखो क्या होता है, मालवेयर हो गया, वायरसेस हो गया, ये क्या हो गया, ये एट दी एंड एक प्रोग्राम ही तो होते हैं, एक स्क्रिप्ट या प्रोग्राम ऑफ एक कोड, एक प्रोग्राम होता है या एक लाइन ऑफ कोड होते हैं। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखा, तो किसी ने ये लाइन ऑफ कोड लेके ब्लॉकचेन पर डाल दिया। अब ये ब्लॉकचेन पे जब ये डाला तो ये एक्चुअली में रेप्लीकेट हो गई, जैसे इस माइनर ने इसको इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजैक्शन रन करा, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन पर इथेरियम की, अब ये रेप्लीकेट होता चला गया और ये मालवेयर पूरे नेटवर्क में फैल गया। सोचो, तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, मतलब इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया, सॉल्व करने के लिए बोला गया कि माइनर्स और जो वैलिडेटर्स हैं, जो पार्ट है इस नेटवर्क का, जो रन कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, वो कभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को अपने मेन सिस्टम पे नहीं चलाएंगे, वो एक वर्चुअल मशीन में चलाएंगे जिसका नाम दिया गया इथेरियम वर्चुअल मशीन। अगर ये इस पर चलाते हैं और बाई चांस अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उनके मेन सिस्टम्स पर कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा, अदरवाइज कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करता नेटवर्क में। सब लोग यही कहते थे कि नहीं नहीं हमारा सिस्टम हैक हो गया तो हम क्या करेंगे। तो अब हालांकि सब लोग अपना सिस्टम अलग रखते हैं, लेकिन वो वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, इथेरियम वर्चुअल मशीन बोला जाता है। वो ऑन टॉप ऑफ इट क्या करता है, ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करता है। तो कई बार जो है तुम लोगों ने सुना होगा कि ईवीएम कंपेटेबल है ये ब्लॉकचेन, मतलब कि क्या है कि ईवीएम कंपेटेबल मतलब कि वो एवेंचुअली जो है वो इथेरियम के ही वर्चुअल मशीन पर चल रही है। जैसे जैसे तुम पॉलीगॉन जानोगे, पॉलीगॉन एक करके एक ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक्चुअली पॉलीगॉन ब्लॉकचेन इवेंचुअली जो है वो ईवीएम पे रन करती है, ईवीएम कंपैटिबल है। मतलब जब भी ये वर्ड यूज होता है ईवीएम कंपैटिबल, मतलब वो एट दी एंड इथेरियम की ब्लॉकचेन पर ही ट्रांजैक्शन सेटल होते हैं, वो इथेरियम वर्चुअल मशीन पर ही सारे क्योंकि जहां ईवीएम आ गया मतलब वहां इथेरियम ब्लॉकचेन आ गई, सीधी सी बात है, क्योंकि ईवीएम इथेरियम ब्लॉकचेन रन ही ईवीएम पे कर रही है। इथेरियम वर्चुअल मशीन्स जितनी भी हैं वो सारी की सारी इन ब्लॉकचेन्स को माइनर्स जो है वो अपने में ये वर्चुअल मशीन डाल के एंड देन दे रन दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। वो डायरेक्टली अपने कभी सिस्टम्स पर नहीं डालते, कभी किसी माइनर से बात करोगे ना वैलिडेटर से, देखना उसका कंप्यूटर में हमेशा एक ये कुछ ना कुछ ये वर्चुअल मशीन चली थी। हालांकि मैंने देखी नहीं है ये कैसी लगती है, मतलब कैसे कैसे का सॉफ्टवेयर है, यू कैन जस्ट गो एंड सी द मतलब इमेजेस की क्या ये वर्चुअल बॉक्स जैसी होती है, लेकिन होती है वर्चुअल मशीन ही है। इसलिए इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा गया। कल को तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज लाइक हम लोग क्यों इथेरियम वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या है। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े। ओके, द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ द इथेरियम इज इथेरियम गैस। यस, व्हाट अ ब्रिलियंट गाय। विटालिक ब्यूटन इज वेरी ब्रिलियंट। आई एम लाइक वेरी मेरे को ऐसा लगता है कि पहले सतोशी नाकामोटो आए जिन्होंने ऐसा बिटकॉइन किया। जब मैं बिटकॉइन पढ़ता हूँ एवरी टाइम आई सी इट कि यार क्या सिस्टम बनाया है, और जब मैं इथेरियम को देखता हूँ तब भी मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यार कैसे कैसे लोग 17 साल 18 साल की उम्र में हम लोग जहाँ ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज सीखे, वहां पर दिस पर्सन हैज इन्वेंटेड अनदर प्रोजेक्ट जो कि आज हम इथेरियम देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो yeah, like it's all about your attitude towards learning and how are you seeing the things. That's good. Actually मैंने कई बार विटालिक ब्यूटरिन के सेशंस अटेंड किए हैं कि when you listen him ना, तो ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार एक विजन है उस आदमी के, उस इंसान के अंदर, आदमी तो नहीं, उस पर्सन के अंदर एक विजन है चीजों को लेकर जो कंटिन्यूसली ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट एंड वी आर सीइंग कि इथेरियम इज इवॉल्विंग डे बाय डे। दैट्स द वे, दैट्स रियली cool. Yes. Okay. Let's कल पढ़ रहा था बिटकॉइन व्हाइट पेपर, पढ़ो यार, व्हाइट पेपर से बहुत ज्यादा चीजें अच्छी मिलती हैं। वी भी आदमी नहीं है क्या? अरे आदमी नहीं, मतलब वो यार वो 24 25 के 10 के साथ वो मेरे को तो वो थोड़ा वैसा लगता है, जब गबरू जवान, वो आदमी बोल दूंगा ना तो सब लोग होंगे कि अच्छा वो कोई बुढ़ा होगा, कोई एजेड होगा। एजे वो बहुत बहुत यंग है यार, उसने बहुत यंग एज में चीजें कर ली, इसलिए मैं उसको आदमी नहीं बोलता भाई। वो लड़का ही है वो। ओके फाइन, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अच्छा ठीक है, चलो अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक है इस सेशन का, सॉरी इस आज के सेशन का, और इसके बाद इथेरियम मेरी साइड से खत्म हो जाएगी।
इथेरियम में कुछ भी नहीं बचेगा। ये लास्ट टॉपिक इथेरियम, तुम लोग सोच रहे होगे 1.5 घंटे में इसने इथेरियम पढ़ा दी। हाँ सच में इथेरियम जिसने बिटकॉइन ढंग से पढ़ ली होगी ना, वो इथेरियम में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इथेरियम थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है। इथेरियम सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, क्योंकि बिटकॉइन आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, इसलिए उसकी थ्योरी जरूरी है। तो प्रैक्टिकल कर सकते हो, लेकिन वो इतने बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। लेकिन इथेरियम बिगिनर फ्रेंडली है, तो क्यों हम इतना थ्योरी में टाइम बर्बाद करें। तो इथेरियम गैस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। सारे के ये थोड़े दिमाग के घोड़े जो कुछ काम कर रहे हो ना, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ जरा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं जब तक यहाँ पर इस सर्वर में ब्लॉकचेन पढ़ाऊंगा, तब तक ये कॉन्सेप्ट मेरे साथ और तुम लोगों के साथ जिंदगी भर रहेगा। जब तक कोई सी भी ब्लॉकचेन में जाओगे, किसी भी ब्लॉकचेन में जाओगे, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ चिपक के चलेगा। इस कॉन्सेप्ट के बिना ब्लॉकचेन कल्पना तो क्या सोच कुछ सोच भी नहीं सकते। इतना तुम इम्प्लीमेंट करना तो छोड़ ही दो। यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि ये कुछ बन सकता है कोड का। तो बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, व्हाट इज इथेरियम गैस? तो एक बार फिर अगेन थ्योरी पढ़ते हैं। गैस इन इथेरियम refers to the fee required to perform operations on the Ethereum blockchain. Every operation like transforming token, executing a smart contract, जो भी है। अभी थोड़ी देर में तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी है। मैंने जैसे तुम लोगों को अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बताया था ना कि एग्जाम्पल लेके थ्योरी कैसे समझनी है। नाउ लेट्स सी। देखो, बहुत सारी थ्योरी मैं लिख देता हूँ, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि तुम लोगों को कुछ फैंसी टर्म्स भी पता होने चाहिए, ऐसा वो भारी भरकम वर्ड्स डालने का ना। तुम लोग भी थोड़ा ऐसा समझो कि ये तो क्या एग्जाम्पल दे दे के सिखाता है। ठीक है, तो समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू सेम। मैं एक कंपनी चलाता हूँ, तो तुम लोग या कोई एक, मैं ही चला रहा हूँ, इसी में ही चला लूँ कंपनी, पीपीटी में। तो कंपनी चला रहा हूँ मैं, शिपिंग कंपनी। ठीक है, शिपिंग कंपनी में क्या करता हूँ मैं, ये कुरियर लेता हूँ और ये कुरियर यहाँ पे ट्रांसफर मतलब बेसिकली डिलीवर करता हूँ। ठीक है, आई एम वर्किंग एज एन डिलीवरी बॉय। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको नोट करते जाना नोट्स में। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा आज से थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें लगाना स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा नहीं है, डेटा साइंस जितना मैथमेटिकल नहीं है। ठीक है, एआईएमएल जितना मैथमेटिकल नहीं है, बट बेसिक मैथ्स है। क्योंकि मेरी भी मैथ्स बहुत बेकार है, तो मैं भी मैथ्स वाली चीजें करता नहीं हूँ। ठीक है, चलो देन गो सी। बहुत ध्यान से समझना। लेट्स से कि ये जो पैकेट है, ये पैकेट मुझे यहाँ पर ट्रांसफर करना है डिलीवरी बॉय को। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ पे करना है। ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन को इसने जो एफर्ट्स लगाए गए हैं वो मुझे पे करने हैं। तो वो अब क्या होगा कि अभी जैसे अगर मैं नॉर्मल तुमसे बोलूं कि गैस प्राइस या गैस क्या है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अभी के लिए सिंपल सा समझो कि मैंने ये पैकेट इस कुरियर बॉय को दिया, इस कुरियर बॉय ने इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब ये बोलेगा कि भाई मेरे को मेरे एफर्ट्स के रिवॉर्ड दो, यानी कि मेरे को मेरा पैसा दो, डिलीवरी चार्जेस दो। मैं बोलूंगा कि ठीक है आप डिलीवरी चार्जेस बोलो। तो ये क्या करेगा, ये सब अपने एफर्ट्स गिनेगा, अपने रिसोर्सेज, अपना टाइम, अपना जो पेट्रोल लगा हुआ है वो, है ना, तो वो सब इसको बेसिकली कैलकुलेट करेगा और बोलेगा कि सर ये मेरा एक्स अमाउंट हुआ है, इसको आप मुझे पे कर दो। ये मेरा जो एफर्ट मैंने डाले हैं उसका ये मेरा क्या है, रिवॉर्ड है। हमने कहा ठीक है, सिंपल, जो कि होता है सब चीज में। यही सेम चीज कहाँ होती है, यही सेम चीज होती है इथेरियम में। इथेरियम में यानी कि ब्लॉकचेन में मैंने अभी तुम लोगों से क्या बोला था। अच्छा, पहले हम लोग ये समझते हैं, पहले मैं तुम लोगों को बताता हूँ। चाहिए है तो लेट्स से कि अब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि ये जो एफर्ट्स हैं ये अभी के लिए, मैंने बोला कि एफर्ट्स जो है वो आईएनआर में लिए जा रहे हैं, यानी इंडियन नेशनल रुपीज में या इंडियन रुपीज में दिए जा रहे हैं कि भाई ये लेट्स से कि आपका डिलीवरी चार्जेस हो गए 250 रुपीज। रिमेंबर माई वर्ड, 250 रुपीज, रुपीज, रुपीज। This is unit that I am using in front or in end of the particular number. अगर इस 250 के आगे अगर मैं L लगा दूं तो ये लीटर बन जाएगा। अगर इस 250 के आगे अगर मैं M लगा दूं तो ये मीटर बन जाएगा। अगर इस 250 के आगे अगर मैं CM लगा दूं तो ये चीफ मिनिस्टर नहीं, सीम सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, इतनी नहीं। तो ये क्या है, ये यूनिट्स है ना, ये नंबर के आगे मैं जो चीज लगा दूं ये उस हिसाब से उस कैटेगरी में आ जाता है। अगर मैंने लीटर कर दिया तो समथिंग इज लिक्विड वी आर मेजरिंग। अगर मैंने इसको मीटर कर दिया मतलब ठीक है हम लोग शायद वायर या कपड़ा नाप रहे हैं कोई। सेंटीमीटर कर दिया तो हाँ ठीक है हम लोग समथिंग इज लेट्स से बहुत स्मॉल चीज है, या हम लोग बोलते हैं ना कि कितने सेंटीमीटर तुम्हारा ये क्लॉथ ले लेते हैं वो है। तो जब हम लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है मतलब इसके पीछे अगर यूनिट लग जाए तो हम हाल पहचान लेते हैं कि वो लिक्विड है कि वो सॉलिड है
कि क्या है वो। अगर मैं जूल बोल रहा हूँ 25 जूल, तो तुम हाल बोल दोगे कि यू आर मेजरिंग एनर्जी आदित्य, यस। तो हर किसी की एक यूनिट होती है। वैसे ही इथेरियम के अंदर जो माइनर्स एफर्ट्स लगाते हैं, जो माइनर्स आपका ट्रांजैक्शन, माइनर्स आपका जो ये ब्लॉकचेन को रन करने में मदद कर रहे हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज है, उसको बोला जाता है गैस। उसको बोला जाता है गैस। मतलब जैसे अगर लिक्विड के लिए हम लोग लीटर बोलते हैं, हम लोग किसी चीज के लिए अगर सेंटीमीटर है, मीटर है, वैसे ही एक यूनिट है गैस, जो कि एफर्ट्स को मेजर करती है इथेरियम के अंदर। इनके एफर्ट्स को, उन माइनर्स के एफर्ट्स को। तो अब थोड़ा सा भी समझ आया, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ। मान के चलो कि ये पैकेट जो है वो मैंने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे मैंने ये बोला कि एक काम करो, ये पैकेट क्या है। मैंने ये बोला ये पैकेट इथेरियम में कुछ नहीं है, ये एज अ ट्रांजैक्शन है। ओके, ये कोई ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन होता है सेंड का, ये ट्रांजैक्शन हो सकता है रिसीव का। ओके, कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, ये कोई भी ट्रांजैक्शन है। हो सकता है ये ट्रांजैक्शन वो हो कि आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेट से आपने एक कोड लिख रखा है, इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी यू होता है अनसाइंड इंटीजर, यू आई इंट इज इक्वल्स टू जीरो। अभी ये ध्यान मत देना, ठीक है, मैं सिंपल बता देता हूँ। इंट आई इज इक्वल्स टू जीरो, और मैंने बोला कि इस आई की वैल्यू को प्लस प्लस करके और ये रिटर्न कर दो आई को। तो मैंने एक गेटर फंक्शन बनाया रखा था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो गेटर फंक्शन को चलाने के लिए भी आपको लेट से कुछ फीस देनी पड़ रही है, ठीक है। अभी के लिए मान के चलो कि कोई फीस देनी पड़ रही है। तो आपने वो गेटर फंक्शन को चलाया, तो कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी ट्रांजेक्शन आपकी तरफ से कुछ भी हो सकता है। तो आपने बोला जब मैंने ये ट्रांजैक्शन सेंड किया, जब मैंने ये ट्रांजैक्शन सेंड करा, रिसीव करा या गेटर वट एवर किया, तो ये क्या हुआ, ये मैंने एक पैकेट, ये मैंने एज एन एक पैकेट समझ लिया, ये मैंने एक पैकेट के अंदर डाल के दे दिया। Okay. तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये पैकेज रिप्रेजेंट हो गया। नाउ आपके जो एफर्ट्स लगे, ये थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलना तुम लोग। ये जो आपके जो एफर्ट्स लगे, रिसोर्सेज, जैसे ये डिलीवरी बॉय ने बोला, ये डिलीवरी बॉय ने बोला कि मेरे सर मेरा टाइम है, मेरा जो नो ये जो फ्यूल लग रहा है ये है, कुछ रिसोर्सेज है जैसे इसका बाइक है। ओके, और भी रिसोर्सेज है, जैसे इसका मोबाइल फोन है, इसका टॉक, तो बहुत सारी चीजें। तो उसको हमने क्या बोला, हमने उसके एफर्ट्स को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बना दी, हमने बोला भाई गैस। अगर इसको हम सेम कुरियर बॉय को अगर हम माइनस से रिप्रेजेंट कर दे, माइनस बोलेगा कि मेरी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मेरे सिस्टम्स रन कर रहे हैं, फिर इनका मेंटेनेंस भी है, फिर मैं आपके माइनिंग भी करता हूँ, तो मेरे इन सब का कुछ एक जो मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, इनको मेजर तो करना चाहिए कि मैंने कितने एफर्ट्स मारे। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मैंने इतनी एनर्जी लगाई, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तुमने कितनी एनर्जी लगाई, 24 जूल, 25 जूल, 50 जूल। तो हम लोग इमीडिएटली बोलते थे कि अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत हो गई। कैसे पता लगा ये बहुत हो गई, कि उसके पीछे जब जूल लगा तो मैं समझ आ गया अच्छा ये एनर्जी को देखा जा रहा है। तो ऐसे ही माइनर्स के एफर्ट्स को इथेरियम के अंदर मेजर करने के लिए हमने बोला गैस। तो अब आपने क्या बोला कि गैस यहां पर ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज समझ के चलो कि एक और चीज होती है आपकी लिमिट। लिमिट क्या होती है, जैसे मान के चलो कि मैंने ये बोला कि आप ये जो पैकेज का साइज है, वो आप सिर्फ और सिर्फ लेट से 2 kg से ज्यादा नहीं भेज सकते हो मेरे मेरे इस कुरियर पे। आपकी जो लिमिट है वो ये है। तो यानी कि मैं ये बता रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं मेरे थ्रू, मेरे एफर्ट्स की जो लिमिट है वो बेसिकली ये गैस लिमिट वो होती है, गैस लिमिट। यानी कि मैं ये बोल दूं कि पैकेज जैसे इसका कुछ साइज है या फिर इसका कोई वेटेज है, अगर वो डिसाइड कर सकता है, यानी कि आप कितना वेटेज ऑफ पैकेज आप डिसाइड कर सकते हो, ये यहाँ पर सेंडर डिसाइड करता है। मतलब जैसे मेरे को अगर पैकेज भेजना है, तो मैंने वो ये बोला कि मैं सिर्फ मैक्स से मैक्स मैं जो है वो 2 kg का पैकेज भेज सकता हूं। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी हो गई गैस लिमिट। गैस लिमिट मतलब कि मैं माइनर से सिर्फ इतना और इतना, इतने लिमिट तक का काम करवा सकता हूं। मैं चाहता हूं, माइनर नहीं, माइनर तो रेडी है करने के लिए। ये आप चाहते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 kg तक का ही सामान भेजूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं भेजूंगा, इससे ज्यादा भेजूंगा तो मुझे लेट से पैसे देने पड़ सकते हैं, ये देना पड़ सकता है, इट माइट भी, तो ये थोड़ा सा रहने देते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, गैस लिमिट ये हो गया। अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये ठीक है, सीखना तो पड़ेगा। मतलब हर चीज कोई सिंपल नहीं हो सकती। एक होता है गैस प्राइस। गैस प्राइस क्या होगा, मैं सिंपल कर रहा हूं जितनी हो सके चीजें। गैस प्राइस ये होती है कि ये आपकी फाइनल कॉस्ट होती है, जो ये बोल रहे हो कि जैसे उसको मैं कैसे बताऊं, उसमें
जैसे ये आपका होता है कि आप, जैसे मैं ये बोलूं कि आपका 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, तो आप बोलोगे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है लेट्स से 83 रुपीज। ओके, तो ये 83 रुपीज कौन डिसाइड कर रहा है? पेट्रोल की कीमत, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत। लेट्स से मैं बोलता हूं कि इस कुरियर बॉय का यहां से यहां तक जाने के लिए 10 लीटर पेट्रोल लगा, तो मैं बोलूंगा कि कितना कॉस्ट हुआ, तो आप बोलोगे कि आप 1 लीटर की तो बताओ। तो 1 लीटर की आपने बता दी 83 रुपीज। मैं कहूंगा ये 83 रुपीज किसने डिसाइड की? तुम कहोगे भाई गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। मैं कहा ठीक है, आपके सेंट्रलाइज सर्वर में, आपके इंडिया में, यहाँ पे 1 लीटर की कीमत जो 83 रुपीज है ये सरकार डिसाइड कर रही है। लेकिन मेरे ब्लॉकचेन के केस में जो 1 लीटर की कीमत कितनी होगी, सबसे ब्यूटीफुल चीज, सेंडर डिसाइड करता है। सेंडर डिसाइड करता है कि मैं, अगर मेरे को एक वन गैस अगर किसी का एफर्ट लगा, तो वन गैस अगर किसी का एफर्ट लग रहा है या कुछ है, तो मैं ये बोल देता हूँ कि भैया देखो, मेरी जो गैस प्राइस है, मैं अभी के लिए वन गैस इज इक्वल्स टू, मेरे लिए वन गैस की जो कीमत है, जैसे मेरी नजर में वो है 0.0001 ईथर। किसी की नजर में एक गैस की कीमत हो सकती है 0.1 ईथर, किसी की नजर में एक गैस की कीमत हो सकती है 1 ईथर। ये तो सेंडर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो तुम कहोगे कि ये कुरियर बॉय जो है, ये माइनर जो है, वो कौन सा ट्रांजेक्शन लेगा? तुम कहोगे ये वही लेगा जिसने ज्यादा गैस प्राइस दी है। दैट इज सेम, यस यू आर राइट, दैट इज हियर बेसिकली नथिंग बट दी डिलीवरी फीस। तो जैसे जैसे आप डिलीवरी फीस बढ़ाओगे, मतलब जैसे जैसे आप अपनी गैस प्राइस बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा आपके जल्दी ऑर्डर यानी कि जल्दी ट्रांजेक्शन के माइन होने के चांसेस है। यानी कि पहला क्या हुआ आपका, गैस। गैस मतलब कि इन सिंपल वर्ड्स ये आपके एफर्ट्स हैं जो गिने जाते हैं। जैसे आपने एफर्ट्स लगाया, तो जैसे आप लीटर गिनते हो लिक्विड में, मैं बोलूं कि आपने अब आप किसी से बोलने तो जाते नहीं हो कि भाई, अब जैसे हम लोग बोल देते हैं कि 1 किलो तेल दे दो, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर तेल दे दो, है ना। अब जैसे तुम्हारे बनानाज होते हैं वो डजन दर्जन में आते हैं ना, कि कितने दर्जन है, तो वो ये तो नहीं बोलते। अब कई लोग किलो से भी देते हैं, कई लोग दर्जन से, बट अगर तुम देखो तो वो यूनिट है। तो गैस क्या है? गैस यूनिट है इथेरियम की, जिसको एफर्ट्स, जो माइनस के एफर्ट्स है उनके लिए यूज किया जाता है। गैस लिमिट वो लिमिट होती है कि इससे ज्यादा आप बेसिकली ट्रांजैक्शन यानी कि इस पर्टिकुलर कुरियर पे खर्च करने के लिए नहीं हो। जैसे आपने गैस लिमिट लगा दी, तो मैं सिर्फ और सिर्फ 0.003 ईथर ही इस पूरी कुरियर को, मतलब जी पैकेज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ही दे सकता हूँ। अगर इससे ज्यादा लगेगा तो मैं नहीं हूं, ये मेरी लिमिट है। ये किसकी लिमिट है? सेंडर की, ठीक है, ये मेरी लिमिट है। और गैस प्राइस क्या होती है? गैस प्राइस जैसे कि जैसे अगर मान के चलो किसी माइनर ने 35 गैस का काम किया, तो जो तुम बोलोगे 35 गैस का थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन सुनते हैं ना कि 35 गैस, 35 गैस मतलब कि उसने इतना एफर्ट लगाए, तो इसका कितना कॉस्ट बनता है? तो तुम कहोगे कि सेंडर आप बताओ कि आपकी नजर में एक गैस की प्राइस कितनी है, आप कितना रखना चाहते हो? बोलेगा मेरे में 0.1 है, तो आप 0.1 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा दैट विल बी द कॉस्ट फॉर द माइनस एफर्ट। एज सिंपल एज दैट। सो टिल हियर एनीवन हैविंग एनी डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं भी थोड़ी देर में ये क्लियर कर रहा हूं कि गैस का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया क्यों गया। अभी थोड़ा सा पहली बार है ना, तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ फैमिलियर होते चले जाओगे ना। इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगी, इतना मेहनत किया एटसेट्रा, ये सब कंबाइन होके गैस में के साथ है। ये ये बेसिकली स्क्रिप्ट होती है सच, ब्लॉकचेन की खुद में। वो माइनस के एफर्ट्स वगैरह मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें बैकएंड में रन करती है, स्क्रिप्ट रन करती है, जो बेसिकली इन चीजों की रिस्पॉन्सिबल होती है। पूरे गैस के कॉन्सेप्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो गैस के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया जाए, कितना एफर्ट्स लगे, वो सब चीजें इसमें देखा जाता है। जैसे इज इज लाइक अ ट्रांजेक्शन फीस। बिटकॉइन में हम लोग जैसे ट्रांजेक्शन फीस देख रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पर हम लोग गैस देखते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे गैस का कॉन्सेप्ट। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों को एक और चीज बताता हूँ कि गैस का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। देखो, मैंने भी थोड़ी देर पहले तुमको बताया था ना कि अगर क्या होगा, कि अगर मान के चलो कि किसी ने क्या हो गया। हम्म, जैसे मान के चलो क्या होगा कि अगर किसी ने इनफाइनाइट लूप रन कर दिया। सतोशी नाकामोटो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? कि अगर किसी ने इनफाइनाइट लूप रन कर दिया, तब क्या करेंगे? तो हम लोगों ने बोला कि अरे, इनफाइनाइट लूप रन कर दोगे तो फिर डाउन हो सकता है। तो वही सेम चीज तुम लोगों ने एक बार सोचा कि इथेरियम में भी तो हो सकती है। इथेरियम की ब्लॉकचेन में भी वो
इनफाइनाइट लूप रन कर सकता है। तो देन द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई गैस हैज इंट्रोड्यूस, तो दिस इज द रीजन दैट्स व्हाई द गैस हैज इंट्रोड्यूस। तो विटालिक ब्यूटेरिन ने जो कॉन्सेप्ट दिया कि देखो, आपके ब्लॉक्स में जो भी आप लूप रन कर रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है कि इसको मैं आपको एक और सिंपल उससे समझाता हूं। इसको मैं आपको ऐसे सिंपल लैंग्वेज से और समझाता हूं कि sorry, देखो, एक चीज समझना थोड़ा सा ध्यान से। जैसे कि तुम मान के चलो, तुमने कोई कॉन्सेप्ट लिखा, तुमने सॉरी कोई भी वो लिखा हुआ है कोड। उस कोड का काम ये है कि वो मल्टीप्लाई करता है नंबर्स को, लेट्स से 2 into 5 + 6। ओके, तो ये तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोड लिखा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तुमने कोड लिखा सॉलिडिटी में। तो उन्होंने ये बोला कि जितने जितने भी जो मतलब जब भी ये कोड लिखा जाएगा, तो जब भी कोई ये ऑपरेशंस होते हैं या कोई भी जैसे लेट्स से एडिशन होता है, ओके, जब कोई एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ओके, या फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ भी होता है, इन चारों में से अगर कुछ भी चीज होती है या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, डिवाइड वगैरह जो भी है, लेकिन मेजर तो यही रहते हैं ना, चार। तो जो पर्टिकुलर जिसने जो कोड लिखा हुआ है, उसको ना डिप्लॉयर जो है, जैसे अगर मैं डिप्लॉय कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको जी हर एक ऑपरेशन का एक कॉस्ट देनी पड़ेगी, जिसको बोला गया एट द एंड गैस प्राइस। जो अभी तुम लोग सचदेव कौन था जो पूछ रहा था मेरे से कि गैस प्राइस कैसे डिस्कवर की जाती है, कितना कॉस्ट होगा, क्या होगा, तो ऐसी की जाती है। तो जब आप अभी ये जो अब इथेरियम पर्टिकुलर जो नेटवर्क है, उसके अंदर हर एक ऑपरेटर की कॉस्ट लिखी गई है कि फिक्स्ड है। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो लेट्स से इसके लिए 2 गैस लगेगा, डिवाइड करते हो तो इसके लिए 1 गैस लगेगा, लेट्स से प्लस करते हो तो इसके लिए 3 गैस लगेगा। मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आप जाके चार्ट देख सकते हो गिटहब पर, इथेरियम की गिटहब रेपो में जाके, वहां पर ये प्रॉपरली दिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन का कितना है, प्लस का कितना है, माइनस का कितना है, कितना गैस है, ठीक है, इक्वल टू का कितना है, बहुत सारे ऐसे है ना। तो लेट्स से कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि 2 into 5 = 2, का मैंने मान लिया लेट्स से 4 गैस है। ओके, तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि अगर कोई माइनर इस पर्टिकुलर, जैसे कोई भी अगर जैसे माइनर छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस अगर पर्टिकुलर कोड को अगर मैं सॉल्व करूं, तो एट दी एंड ये इथेरियम की ब्लॉकचेन पे सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं माइनस के एफर्ट लगेंगे। तो क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि कितना जो है पर्टिकुलर जो इज इक्वल टू में आएगा? अगर जैसे मान के चलो 2 तो तुम्हारा सेम है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए तुम्हारा 2 हो गया, प्लस के लिए तुम्हारा कितना हो गया, 3 हो गया, इज इक्वल टू के लिए कितना हो गया, 4 गैस हो गया। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो, मल्टीप्लीकेशन के लिए जैसे इथेरियम ने बोला कि हम 2 गैस एफर्ट मानते हैं, प्लस के लिए हम लोगों ने 3 गैस एफर्ट मानते हैं, इज इक्वल टू के लिए हम लोग 4 गैस एफर्ट मानते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 गैस। मतलब इतना एफर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में लगेगा माइनस का। तो ये क्या हो गया, ये आपके एफर्ट्स हो गए जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था। अब ये जो गैस है, ये ना पे करी जाती है डिप्लॉयर के थ्रू। मतलब जैसे अगर मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा तो मुझे ये गैस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो विटालिक ब्यूटेरिन ने ये बोला कि अगर मान के चलो मैंने अगर कोई कोड लिखा और इसके अंदर फॉर लूप लगा दिया इनफाइनाइट, तो फॉर लूप अगर आपने इनफाइनाइट लगा दिया, तो जितनी बार भी ऑपरेशन रन करेंगे, कोई भी ऑपरेशन रन करेगा, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस एक्चुअली में ये 9 गैस है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अभी ये तो गैस आ गया, अगर मैं इसकी गैस प्राइस देखूं तो वो क्या होगी, गैस प्राइस मतलब कि सेंडर डिसाइड करता है। मतलब अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा हूं, तो ये मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी गैस प्राइस की, तभी मैंने बताया था ना कि 1 लीटर का क्या कॉस्ट चल रहा है, जैसे हमने बोला 83 रुपीज, तो मैंने बोला ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। लेकिन यहां मैं डिसाइड करूंगा कि जैसे मैं बता रहा था ना, बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन फीस डिसाइड करते हैं सेंडर। जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन फीस बढ़ाता है, उतनी ही ज्यादा जल्दी चांसेस होते हैं माइनस के आपके ट्रांजैक्शन पिकअप करने के। वैसे यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने बोला कि मैं जो 1 गैस है, उसका जो गैस प्राइस है मैं वो रखता हूँ लेट्स से 3 इथेरियम, ये बहुत ज्यादा है, मतलब ठीक है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये 1 इथेरियम की जरा देखो, लेकिन ठीक है, सपोज जरा सिंपलिसिटी के लिए नो पॉइंटर वैल्यू 3 इथेरियम है,
तो अगर एक गैस की कीमत 3 इथेरियम है तो 9 गैस की कितनी होगी ये बताओ। 3 9 जा 27, यानी कि मेरे को जो है 9 गैस जो है बेसिकली लग गया। ये जो पर्टिकुलर इतना जो मेरा 9 गैस आया, ये जो है 27 जो है वो मेरा गैस प्राइस है। लेकिन ये गैस प्राइस ऐसे नहीं निकलती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं जरा, थोड़ा सा मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठो, तब तुम्हें पता लगेगा कि गैस प्राइस निकलती कैसे है। जैसे मान के चलो कि ए को 2 इथेरियम सेंड करने हैं, ए को 2 इथेरियम सेंड करने हैं बी को, तो यहां पर वो कितनी गैस प्राइस पे करेगा ये हमको निकालना है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, करके देखते हैं एक बार। तो लेट्स से कि ए को बी को 2 इथेरियम भेजने हैं और तुमसे ये पूछा गया कि जो टोटल फीस है, लेट्स से मैं इसको गैस प्राइस ना करके ये बोल दूं कि टोटल कितनी फीस है जो ए सेंड करेगा। यहां इस केस में सब कुछ ए ही करेगा। तो तुमने ये बोला कि एक काम करो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जो गैस प्राइस है वो क्या है तुम्हारी नजर में, सेंडर की नजर में। तो मैंने बोला कि जो सेंडर है, सॉरी, सेंडर ने ये बोला कि जो गैस प्राइस है, गैस प्राइस का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि गैस प्राइस पर यूनिट, मैंने बोला पर यूनिट। तो मैंने बोला गैस प्राइस पर यूनिट क्या है। तो एक और यहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू तुम लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो कि है इथेरियम की ना एक्चुअली जो ईथर है, अगर तुम देखो कि ईथर इज अ करेंसी इन द ब्लॉकचेन, ओके, एक कॉइन है ये बोल सकते हो। लेकिन जो यूनिट्स मैंने बोला था ना अभी, यूनिट्स है, जैसे ईथर एक यूनिट, जैसे गैस एक यूनिट है, वैसे ईथर एक यूनिट है, इससे माल पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है। तो जैसे हम लोगों के में लैख है, रुपीज है, आयन सॉरी रुपीज है, पैसा है ना, ये सब यूनिट्स है। तो अगर मैं सबसे बोलूं कि इथेरियम के अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, जैसे ईथर हो गया, ईथर के बाद एक वेई होता है, WEI, एक वेई होता है, और एक होता है ग्वेई, GWEI। तो इथेरियम के अंदर सबसे ज्यादा जो छोटी यूनिट होती है, सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है ग्वेई। और जितनी भी गैस फीस जो होती है वो सब ज्यादातर जो है वो ग्वेई में ही मेजर की जाती है। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास 1 ETH है, या ऐसा मान के चलो मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास 100 रुपए है, लेकिन फिर मैं तुमसे बोल दूं कि 100 रुपए के इक्वल जितने पैसे, मतलब अभी तुम लोग रुपए हैं, रुपए के ऊपर मैं अगर कुछ और ऐसा मैं बोल दूं कि इतने पैसे हैं, अगर उतने उतने ही, मतलब पैसा बहुत छोटी यूनिट हो गई ना, अगर उतने ही इक्वल ऑफ अमाउंट ऑफ पैसे मैं अगर तुम्हारे सामने रख दूं इज इक्वल टू 100 रुपए, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ इक्वल ही तो है, बस तुमने क्या करा, तुमने वो पैसे में यूनिट को मेजर किया है। तो मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर ग्वे में यूनिट को मेजर किया है, इसमें ग्वे में। एक होता है ईथर, अगेन एक होता है वे, एक होता है ग्वे। तो हम लोग सबसे ज्यादा, हम लोग जब भी डील करते हैं गैस प्राइस में, तो हम लोग ग्वे में, यानी कि ईथर की सबसे छोटी यूनिट है उसमें करते हैं। तो मैंने ये बोला कि गैस प्राइस जो है वो ए ने सेट करी कि भैया मैं 100 ग्वे जो है वो मैं दूंगा, मतलब कि 100 ग्वे जो है वो मेरी नजर में एक गैस का प्राइस है। अगर कोई माइनर एक गैस का एफर्ट लगाता है तो उसको मैं 100 ग्वे दूंगा, ठीक है। 100 ग्वे जितना भी होता है ईथर में आएगा, से 0.0000000 कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो 100 ग्वे में आपको दूंगा। तो एक तो ये मैंने गैस प्राइस डिसाइड कर दी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर गैस लिमिट डिसाइड करनी है, जो मैंने अभी बोला था कि तुम्हारे कुरियर की एक, तुम्हारा जो एक लिमिट होनी चाहिए ना। जैसे तुम ये बोल रहे हो कि मुझे ना ओला से ये पैकेज जो है ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन जो मेरी टोटल जो एक्सपेंडिचर लिमिट है इस पूरे कुरियर को भेजने के लिए, वो मेरी लेट से 100 रुपए है, मैं इससे ज्यादा नहीं देख पाऊंगा। तो तुमने क्या करा, कैप लगा दिया कि मेरे वॉलेट से सिर्फ और सिर्फ मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे 100 रुपया खर्च कर सकता हूँ। मैंने ये बोला कि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि मेरी जो गैस लिमिट है वो है, जो स्टैंडर्ड मानी जाती है वो जाती है 21,000 यूनिट्स। गैस लिमिट्स को हमेशा जो है वो यूनिट्स में नापा जाता है। और तुम कहोगे यार इतनी सारी है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। और अगर पहली बार कंफ्यूज होते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ये नहीं सोचना कि समझ नहीं आ रहा है या हमारे लिए नहीं है, अब ब्लॉकचेन डिफिकल्ट हो रही है। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि जैसे जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे ना, जैसे जैसे हम चीजों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वैसे वैसे हमें ये और क्लियर होगी। तो मैं ये तुम लोगों से कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं अभी ये चीज कि तुम लोग इसमें मास्टर हो जाओ। बस ये जो टर्म्स हैं इसके साथ तुम फेमिलियर हो जाओ कि गैस प्राइस क्या है, गैस लिमिट क्या है, यूनिट्स क्या है, ग्यूई क्या है। कि ये जो कॉन्सेप्ट है मैं ये दोबारा समझाऊंगा जब हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले तो तुम लोगों का एक बार रिवीजन करवा दूंगा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ढंग से नहीं समझोगे, अभी समझ लो बाद में फिर समझ लेना। तो एक हमारा गैस प्राइस हो गया, एक हमारा गैस लिमिट हो गया। अब मुझे ये बताओ, अब अगर मुझे टोटल गैस निकालनी है कि मुझे कितना देना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि जो गैस लिमिट है उसको मल्टीप्लाई कर दो गैस प्राइस पर यूनिट। मतलब तुम ये बोलते हो कि मैं 21,000 जो है वो इतनी यूनिट्स में खर्च कर सकता हूं। तुमने बोला कि मैं पर यूनिट, मतलब पर यूनिट मैं एक यूनिट को यहां पर वन ग्वे से, बेसिकली वन ग्वे से मैं क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ कि अगर कोई इतना एक यूनिट का खर्चा, मतलब अगर एक यूनिट, अरे यार तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल देख लो ना, तुम घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो हम लोग नहीं बोलते कितनी यूनिट जली, तुम बोलते हो कि अरे मेरे घर पे तो 200 यूनिट जल चुकी है। तो तुम बताते हो ना कि अरे एक यूनिट की कीमत, जैसे लेट से किसी के घर पे एक यूनिट 10 रुपए की है, तो तुम बोल देते हो कि अच्छा तूने 200 यूनिट जलाएंगे तो मतलब तेरा 2,000 रुपए का बिल आएगा। वैसी सेम चीज हमने करी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, बस फॉर्मूला ये है कि जो गैस लिमिट है, मैंने बोला कि गैस लिमिट है हमारी 21,000। मतलब मैंने ये बोला कि मैं, मतलब एज अ ए सेंडर ने ये बोला कि अगर मुझे बी को 2 इथेरियम भेजने हैं तो मैं हद से हद जो एक्स्ट्रा फीस है मैं उस पर सिर्फ 21,000 यूनिट्स का ही डिसाइड कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो 21,000 इंटू अगर तुम गैस प्राइस करोगे 100, तो तुम्हारा टोटल जो फीस है, टोटल फीस या गैस बोल लो, टोटल फीस या गैस है वो कितनी निकल आएगी, 21, 123 और ये 4 2 0, तो ये तुम्हारा लगभग हो जाएगा 0.0022 इथेरियम या 23 इथेरियम के आसपास। तो इतने ये ग्वे में है एक्चुअली में, मतलब 21,000 ग्वे तुमने देने पड़ेंगे माइनर को। अगर तुम्हारा इतना, वैसे तो 21,000 जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट होती है हर ट्रांजेक्शन के लिए, फिर अगर फेल होता है तो उस चक्कर में ये तो 0.022 जो है वो देने पड़ेंगे। तो इतना समझ आया क्या यहां तक? तो मैं तुम लोगों को अब ये समझा सकता हूं कि गैस प्राइस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। और ये जो जितना भी पैसा है ये कौन देता है, ये सेंडर देता है। यानी कि अगर वो 2 इथेरियम को ट्रांसफर कर रहा है तो भी उसी को देना है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है या डिप्लॉय कर रहा है तो उसको देना है। अगर जैसे मान के चलो तुम यूजर हो, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया जो ये बोलता है कि आप एक ही वैल्यू 10 है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, एक ही वैल्यू को 10 आपको प्रिंट करा के दे देता है। तो अगर आप चाहते हो, मतलब लेट्स से कि यहाँ पे मैं हूं और लेट्स से कि अनिकेत है, अनिकेत को चाहिए कि मैं ए को प्रिंट कराऊं। अब यहाँ पर अनिकेत चाहता है कि मैं ए को प्रिंट कराऊं, यानी अनिकेत यहाँ पर सेंडर हो गया। अब यहाँ पर अनिकेत को अपने पैसे, यानी कि अपना जो वॉलेट है उसमें से गैस प्राइस देनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रन करने के लिए। ऐसे कर, ये थोड़ी दिन में हम लोग समझेंगे जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बट ये हमेशा याद रखो, जो गैस प्राइसेस होती है ना, ये हमेशा सेंडर की साइड से जाती है, हमेशा सेंटर की साइड से जाती है। तो ये सारी चीजें क्लियर है, थोड़ा समझ आया कि नहीं आया? गला सूख गया मेरा। अभी भी पूछ लो कोई दिक्कत हो तो। थोड़ा थोड़ा आ गया बहुत है, थोड़ा थोड़ा ही मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा आ जाए। मैं चाह भी नहीं रहा कि तुम लोग एक बार में मास्टर हो जाओ, इसको हम लोग स्मार्ट कॉन्टेक्ट करेंगे तब समझेंगे, लेकिन अपनी साइड से थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई करना गैस प्राइस के बारे में। नहीं तो जब हम लोग करेंगे तो करी देख ही लेंगे, ठीक है? समथिंग समथिंग सही है। तो गैस प्राइस का कॉन्सेप्ट जो है वो इसलिए लाया गया, विटालिक ने ये बोला कि अगर मान के चलो किसी ने इनफाइनाइट लूप रख दिया, किसी ने अगर इनफाइनाइट लूप लगा दिया कोड के अंदर, तो अब ये मान के चलो कि इनफाइनाइट लूप अगर वो लगा देगा, तो यहां पर मैंने तुम लोगों से एक कंसेप्ट बोला था कि गैस लिमिट लगी हुई है, एक गैस लिमिट लगी हुई है, और एक गैस लिमिट, और दूसरा मैंने क्या बोला, एक हो गया तुम्हारा गैस लिमिट और दूसरा हो गया तुम्हारा जो गैस है एक्चुअल में, जो ऑलरेडी डिफाइंड है कि मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, डिवाइड के लिए क्या होगा, इन सब के लिए गैस। तो अगर किसी ने इनफाइनाइट लूप अगर किसी मशीन के अंदर चला भी दिया, तो ये इनफाइनाइट रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलेगा तो एक बात बताओ, कोई ना कोई ऑपरेशन होंगे उसके अंदर जो चलेंगे। वो ऑपरेशंस क्या करेंगे, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है या फिर जो ये लूप रन कर रहा है बेसिकली, उसके वॉलेट से या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था
कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी खुद का एक अकाउंट होता है। ये याद है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी खुद का एक अकाउंट होता है, इसमें वो फंड्स स्टोर कर रहे थे हम लोग। लेकिन मैथमेटिक्स के चक्कर में अभी 15 मिनट पहले की चीज तुम भूल ना जाओ। याद है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट था, तो हम लोग पैसा स्टोर करते थे। तो मान के चलो कि हैकर ने एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें इनफाइनाइट लूप को उसने डाल दिया। लेकिन लेट्स से कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैकर को अगर इनफाइनाइट लूप चलाना है तो उसको इतने फंड्स डालने पड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं फाइनाइट ही रहेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चलाना है तो इनफाइनाइट फंड्स भी डालने पड़ेंगे। इतना तो हैकर तो करेगा भी नहीं, क्योंकि इट इज वेरी कॉस्टली। तो अगर मान के चलो जब जब जैसे फॉर लूप के अंदर कुछ ऑपरेशन चलना है प्लस माइनस के, तो जब जब ये लूप चलता जाएगा तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में से उतना पैसा जो है वो कट होता चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो ब्लॉकचेन के पास जाएगा। मैंने अभी बताया ना कि गैस के फॉर्म में, ये मल्टीप्लीकेशन का ऑलरेडी डिफाइन है, वन डिफाइंड है। तो ये क्या होता है कि गैस प्राइस के उसमें ये कट होता चला जाता है। मतलब ये मान के चलो कि अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 100 रुपए रख दिए, ठीक है, और मैंने बोला कि ये फॉर लूप चलता जा रहा है, लेकिन अगर ये फॉर लूप इनफाइनाइट इनफाइनाइट चलता जा रहा है, ये ऑपरेशन प्रोसेस कर रहा है, तो मैंने अभी ये बोला था कि हर एक ऑपरेशन के लिए इथेरियम चार्ज करता है। अगर आपने मल्टीप्लीकेशन लिखा तो वो एक गैस होगा उसका प्राइस। अब एक गैस की भी तो कोई ना कोई कीमत होगी ना एक्चुअल में, आपको जो पे करनी पड़ेगी ऐसे डिवाइड के लिए। तो अगर आपने कुछ ना लिखे तो आपके मान के चलो आपने ये मल्टीप्लीकेशन ही किया 2/3 का, करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो। लेट्स से ये एक गैस ले रहा है, तो आप कितना करोगे? जितनी बार आप रन करोगे उतनी टाइम आपका ये पैसा कटेगा। आपने एक बार रन किया 1 रुपया कट गया, 2 बार रन किया 2 रुपया कट गया, ऐसे करके अगर आपने इनफाइनाइट लूप है, इसमें तो कोई लिमिट है नहीं। लेकिन जैसे ही ये 100 की काउंटर को रीच करेगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खाली हो जाएगा। वो कहेगा अब नहीं है मेरे पास, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मेरे अकाउंट में। और जैसे ही अकाउंट में कुछ नहीं बचेगा, वो लूप वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बंद हो जाएगा उसी टाइम पर ऑटोमेटिकली। वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि आप आपके पास फंड्स नहीं है। और जब आपके पास फंड्स नहीं है तो आप माइनस को क्या दोगे? माइनस को जब तक दोगे नहीं तब तक वो काम करेंगे नहीं। इसलिए विटालिक ने ये कहा कि अगर बाई चांस अगर ये चीज आ भी जाती है, सबसे पहले तो वो जो गैस है, यानी कि जो हम पैसा ले रहे हैं यूजर से हर एक किसी ऑपरेशन को रन करने का, तो यूजर खुद ब खुद अपने आप में ये ध्यान रखेगा कि उसके फंड्स जो हैं या फिर जो कोड है वो जो रन कर रहा है वो कभी भी ऐसा कोड ना हो कि उसके फंड्स पूरे खाली कर दे। इस केस में जो ये 100 रुपए ये कोई के नहीं है, ये हैकर को ही डालने पड़ेंगे, क्योंकि उसी ने कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला सेंडर को ही करना पड़ता है ये सब चीजें, इसलिए। और दूसरी चीज होती है गैस लिमिट। मैंने बोला था भी गैस लिमिट। मान के चलो कि गैस प्राइस मान के चलो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर एक वेरिएबल दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0। और मैंने बोला था अभी कि जैसे ये ए वेरिएबल को प्रिंट करना है तुमको, ठीक है, ये ए वेरिएबल को प्रिंट करना है, सॉलिडिटी में कोड लिखा हुआ है। अब तुम एक बटन दे दिया, मैंने यहाँ पर एक बटन दे दिया कि भाई तुम जब भी अगर तुमको ए की वैल्यू देखनी है कि ब्लॉकचेन पे क्या है तो प्रिंट करो। और जब जब जैसे जैसे बार बार प्रिंट करोगे तो जितनी बार तुम ये बटन दबाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगेंगे मेरे को ब्लॉकचेन से डेटा क्वेरी करने में, कुछ करने में, तो उधर मैं क्या करूंगा, कुछ गैस आपसे ले लूंगा, कुछ आपसे पैसा लूंगा। आपने ये बोला कि देखो मैं तो उसको इनफाइनाइट बार भी क्लिक कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अरे मजा आ रहा है, करते रहो करते रहो करते रहो। ऐसा मतलब मैं तो क्लिक करता जा रहा हूँ क्लिक करता जा रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पैसा पीछे से जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने वॉलेट में कैप लगा दूंगा। मैं बोलूंगा कि अगर मैं कहीं पे भी किसी भी एप्लीकेशन पे इंटरेक्ट करता हूं और अगर वो एप्लीकेशन मुझसे ये फीस मांगती है एज एन इंटरेक्शन के लिए, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे एक लिमिट लगा दूंगा कि भैया देखो मैं इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को करने के लिए, जैसे मान के चलो आपने कहीं से एनएफटी खरीदनी है, ठीक है, अब आपको एनएफटी खरीदनी है। अब वो एनएफटी खरीदने के लिए अगेन आपको कोई ना कोई गैस फीस देनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता लग गया कि यार इस एनएफटी को खरीदने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 21,000 यूनिट्स का ही गैस लिमिट जो है वो लगाऊंगा। इससे ज्यादा अगर ये लिमिट जाएगी तो मैं ये ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा वॉलेट जो है उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देगा। यानी कि तो मैंने क्या बोला, मैंने ये गैस लिमिट लगा दी। मैंने बोला कि अगर मैं ये एनएफटी खरीदता हूं और इन सब का जो टोटल मिलाने के बाद और एफर्ट्स जो मैं जो चाहता हूं कि माइनस एफर्ट्स लगाए, वो सिर्फ 21,000 यूनिट्स का लगाए। अगर वो इस 21,000 यूनिट्स के एफर्ट्स में अगर वो काम नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इस लिमिट को बढ़ा दूं, जिसके लिए मुझे अगेन जैसे मैं डिलीवरी में बोल रहा था ना कि पैसा बढ़ाओ तो डिलीवरी फीस बढ़ा दो तो वो जल्दी हो जाएगा। वैसे ही सेम चीज यहाँ पर क्या होगा कि 21,000 यूनिट्स को अगर मैं 23,000 कर दूं तो
मैंने यहाँ पे गैस लिमिट बढ़ा दी। इवेंचुअली फॉर्मूला क्या था गैस प्राइस का? गैस लिमिट इंटू क्या था? याद भी एक नहीं फॉर्मूला इन लोगों को यार। गैस लिमिट इंटू गैस प्राइस पर यूनिट। तो जैसे जैसे गैस लिमिट बढ़ेगी, मल्टीप्लाई है, तो वैसे वैसे क्या होगा, गैस प्राइस भी बढ़ेगी। उसी चक्कर में गैस लिमिट जो है वो यूज करी जाती है कि सेंडर की तरफ से ना ऐसा नहीं हो कि कोई वेबसाइट है वो 50,000 यूनिट्स ले रही है और सेंडर का इतना सारा फंड्स चले गए, और माइट भी सेंडर चाहता भी नहीं है कि मैं इतनी ज्यादा इस ट्रांजैक्शन, इतनी डिलीवरी फीस जो है, यानी कि इतनी ट्रांजैक्शन फीस मैं दूं। तो उस टाइम पर वो बोल सकता है कि मैं तो भैया 21,000 दूंगा, भले ही मेरा जो है ट्रांजैक्शन वो 15 सेकंड या 20 सेकंड में हो जाए, लेकिन ठीक है, हो जाएगा तो आई विल डू दैट। हाँ, so that's how the gas price concept has introduced in the Ethereum। और इसी की वजह से आज हम लोग जो है गैस प्राइस देख रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पर वो ये है कि हम लोग जितने भी सॉलिडिटी डेवलपर्स हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जितने भी हैं, हम सबका एक ही मोटिव होता है कि जो भी कंपनी हमें हायर करे, हम उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कम से कम ऑपरेशंस का यूज करके उस अचीवमेंट यानी उस गोल को अचीव कर ले। क्योंकि जैसे मान के चलो तुम, ये अभी हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, लिख दिया इंट ए, अरे इतना यूज नहीं कर रहा है, लिखा रहे तो क्या जा रहा है। तो सॉलिडिटी में ऐसे नहीं कर सकते, अगर ये लिख दिया ना तो इसका पैसा लग जाएगा। अगर तुमने मान के चलो ए इंटू बी इंटू सी कर रहे हो, या फिर मान के चलो तुम कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो तुम, लेट्स से कि तुमने क्या करा, पहले लेट्स से ए प्लस बी करा इज इक्वल्स टू सी करा, फिर उसके बाद डी लिया, फिर उसके बाद तुमने सी प्लस डी करा, सॉरी ई करा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा, भैया मेरे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम चाहो तो ये जावास्क्रिप्ट में आराम से कर सकते हो कि ए को, अगर मुझे लेट्स सी चाहिए तो तुम कहोगे ए प्लस बी कर दो, और मैं कहूंगा जैसे ए प्लस बी प्लस डी चाहिए मुझे, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ पर डी लगा दूं, और एक ऑप्शन क्या है, तुम कहोगे कि मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ आदित्य, मैं यहाँ पर ई ले लूं और ए प्लस बी प्लस सी कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास ई आ जाएगा, है ना। इफ आई राइट इन कमेंट्स, कमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट्स का नहीं लगता है, कमेंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन जो भी कोई ऑपरेशन है जो विदाउट कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अब मैं ये बोलूंगा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग थोड़ा सा भी अगर समझे हो तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, माइनर क्वेश्चन है। इन दोनों में क्या तुम लोगों को लग रहा है कि एक स्टेप ज्यादा हो रहा है, मतलब मुझे किस ऑपरेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा, बताओ। अगर मैं इसको रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ, इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकता हूँ, किधर, मैं किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, मैं मतलब किस पर्टिकुलर, मैं डिवीजन, इक्वल टू, प्लस, माइनस, किसके लिए मैं एक्स्ट्रा फीस दूंगा? देखो ये तो कांस्टेंट रहते हैं, ये तो कांस्टेंट रहते हैं, लगता है तो वो, जो लगता है वो, देखो पैसा तो बहुत, पैसा तो दोनों स्टेप्स का लगेगा, लेकिन इसमें मुझे ये बताओ, मैं एक्स्ट्रा एक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूँ, इसका मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस, सॉरी, लेट्स से मान के चलो मैं यहाँ पर जैसे ए प्लस बी है, मैं ए प्लस बी कर दूं, और यहाँ पर मैं अगर इज इक्वल टू हटा के मैं एक ही लाइन में अगर इन सबको कर दूं तो मैं इज इक्वल टू का पैसा बचा लूं। यानी कि ऐसा मान के चलो एक एग्जांपल में कि ए, ये क्या हो रहा है? हाँ, एक बात बताओ, अच्छा एक बात मान के चलो, जैसे ए प्लस, मान के चलो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है, ओके, और डी इज इक्वल्स टू ई है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल दूं कि मैं ए प्लस, लेट्स से मेरे को अगर इज इक्वल ई के अंदर डी असाइन करना है, और लेट्स से कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी प्लस डी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सी को, एक तो यहाँ पे मैं प्लस लगा रहा हूँ, एक मैं इज इक्वल टू का ले रहा हूँ, चलो मुझे प्लस तो देना भी पड़ेगा, प्लस का मुझे जो पैसा है वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऊपर भी लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी तो एक प्लस का पैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक इज इक्वल टू के ऑपरेटर का भी पैसा दे रहा हूँ। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी अगर मैं करता हूं, मैं दोबारा से अपनी बात को दोहराता हूं, अगर मैं ए प्लस बी इज इक्वल टू सी करता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि ये सिंपल है, लेकिन मैं अगर मैं बोलूं कि मैं सी प्लस डी कर रहा हूं और फिर मैं इज इक्वल टू इसको ई में कर रहा हूं,
तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं एक इज इक्वल टू का पैसा ज्यादा दे रहा हूँ ना। आ रही है कि नहीं बात समझ में सबको? इज इट क्लियर कि मैं यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स्ट्रा लगा रहा हूं? अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो जो पर्टिकुलर ई है वो मेरे साथ आ सकता है। सॉरी, ए प्लस बी प्लस जो सी भी है प्लस डी भी है। डायरेक्ट डी लिख दे मतलब, हाँ डायरेक्ट डी लिख दो और ये और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, ऑप्टिमाइज करने के तरीके ए प्लस बी प्लस डी लिख दो। तुम ए प्लस बी प्लस, सॉरी यहाँ पर डी आएगा, सी नहीं आएगा, गर्मी चढ़ गई है दिमाग पे। तो ये डी आएगा, माय बैड, ये डी आएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस जो है वो डी आएगा। तो मैं दोबारा से बोलता हूँ, एक बार और समझो। लेट्स से कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू सी। जो भी सी आया उसके साथ मैंने जो है मल्टीप्लाई कर दिया ई का, और मैंने उसको ए बी सी, जैसे यहाँ पे मैंने डी का मल्टीप्लाई कर दिया और ई में असाइन करवा दिया, है ना। तो मैं ऐसा कर दूं यहाँ पर कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बाई डी कर दूं, है ना। अब देखो ये मल्टीप्लाई जो है वो यहाँ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इज इक्वल टू मैं असाइन करवा रहा था वो मैं इज इक्वल टू ए की मैं निपटा दूंगा, जो कि हो जाएगा सी। आई बात समझ में? एक और बार और समझाऊं? प्लस से डिवाइड, अभी मैंने तो प्लस से समझा दिया, डिवाइड से समझा दिया, तो अब एक बार और समझो, एक बार और समझ लो। जैसे मान के चलो मैंने बोला 2 × 3, जो भी रिजल्ट आए उसको ई में रख लो, ठीक है, और ई को फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 से और उसको फिर लेट्स से डी में रख लो। तो कैसे करोगे? 2 × 3 करोगे तो वो ई के अंदर असाइन हो जाएगा, ई एक बॉक्स उसके अंदर 6 होगा। फिर इस 6 को यानी कि ई इंटू 4 करोगे, फिर वो एक डी अलग से बॉक्स बनेगा, उसके अंदर असाइन करोगे, 6 4 24, ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करोगे, तुम डी को डायरेक्ट लिख दो, जो तुम लोग बोल रहे हो ना चैट में, एक डू 2 × 3 जो है, और सॉरी नॉट डी को डायरेक्ट लिख दो, इस 4 को डायरेक्ट लिख दो, जैसे कि 2 × 3 × 4। तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि डी को डायरेक्ट लिख दो, डी को डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि देखो डी को कंप्यूट करने के लिए तुमको ई और ई को कंप्यूट करना पड़ेगा और 4 को कंप्यूट करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात समझ में? डी कब निकल रहा है? डी तभी निकल रहा है जब ई और 4 का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो यानी कि एक एफर्ट तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई का लगा रहे हो, प्लस तुम एक इज इक्वल टू भी लगा रहे हो उसको असाइन करने में। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मल्टीप्लाई को तो रखूंगा ही रखूंगा, ये इज इक्वल टू को डिस्कार्ड कर दूंगा। मोहम्मद वसीफ, तो तुम बोल रहे हो समझ आ रहा है? तुम जो बोल रहे हो बार बार कि ये 2 × 3 इज इक्वल टू को डायरेक्ट कर दो, तुम खुद सोचो कि अगर तुमको डी चाहिए तो डी निकलेगा कैसे? ई इंटू 4 से। ई चाहिए तो कैसे निकलेगा? 2 × 3 से। अब जब 2 × 3 इज इक्वल टू ई आएगा तब मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को इधर प्लेस करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, तब मैं डी कैलकुलेट करूंगा। तो इससे बढ़िया ये जो एक्स्ट्रा जिसके लिए मेहनत करी जा रही है 4 के लिए, मैं डायरेक्ट या 4 ना लिख दूं। सिंगल सिंपल मैथ है यार, बहुत सिंपल मैथ है। अगर मुझे ये समझाने की जरूरत पड़ रही है, आई गेस हम लोग बहुत ज्यादा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है ना। हाँ सी, वी कैन सेव एक्स्ट्रा साइन। इन शॉर्ट कोड ऑप्टिमाइज करना है, मेरे समझाने का मतलब समझो, ओके, कि कोड ऑप्टिमाइज करना है। हम जितने भी सॉलिडिटी डेवलपर्स हैं, आई एम आल्सो सॉलिडिटी डेवलपर, तो जब भी कोड लिखता हूं मैं कोशिश करता हूं कि मैं लूप्स का कम से कम यूज करूं, क्योंकि जब भी लूप्स यूज होते हैं सॉलिडिटी में तो हम लोग ट्राई करते हैं कि लूप्स का जितना हो सके हम लोग निगलेक्ट करके चले। अब ऐसा है कि वैसा नहीं है कि यूज ही नहीं करते, लेकिन ट्राई करते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है कि फॉर लूप का यूज नहीं करा जाए, लेकिन जहां करना है वहां करना है। लेकिन जहां नहीं करना, मतलब ट्राई करते हैं कि अच्छा ये काम मैपिंग से हो जाएगा तो वहां कर लेते हैं। अरे हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि अरे और डायनेमिक अरे होता है तो क्योंकि हर एक चीज का पैसा लगता है इधर। आपने इंट आई इज इक्वल्स टू 0 लिखा, इसका भी पैसा लगेगा। आई लेस देन इज इक्वल्स टू लेट्स से कुछ एरे की लेंथ है, तो पहले एरे की लेंथ जो कैलकुलेट की उसके एफर्ट का पैसा। फिर आपने जब ये इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लगाया, इसका पैसा। फिर आपने जब आई प्लस प्लस किया तो ये प्लस प्लस का पैसा। तो उसके अंदर तो हम लोग ना बहुत ज्यादा सोच के चलते हैं कि फॉर लूप है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करके चले अगर यूज करना है, और एरे का हम लोग कम से कम यूज करें। इसके बजाय हम लोग मैपिंग यूज करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सॉलिडिटी में मैपिंग होती है, आपने सुना होगा। एरे का हम लोग बहुत हाईली इंटेंस लेवल पे यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि फटाक आया तो एरे लगा लिया।
चलो सोचते हैं कि अच्छा एरे को हटा के कुछ और कर सकते हैं क्या? अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग एरे यूज कर लेते हैं। तो दैट्स हाउ लाइक द सॉलिडिटी डेवलपर वर्क। तो अगर तुम लोग सॉलिडिटी में अच्छे खासे काम कर लिए ना 6 महीने में, तो जो तुम लोग बोलते हो ना कि ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है डीएसए में वो वगैरह में, बहुत काम आती है। मैंने 2 साल डीएसए पढ़ाया था, और 2 साल मैंने खुद भी पढ़ा था उस टाइम पर। मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, और मैंने इतने ऑप्टिमाइजेशन देखे थे उस टाइम पर कि जब मैं सॉलिडिटी में आया था ना, तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन खेल लगने लगे थे। अरे ये तो करके आ रहे हैं ऑलरेडी डीएस में, तो इस तरीके से कई बार डीएसए हेल्प कर जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर डीएसए कराइए तो ऑप्टिमाइज आता हो। आपको डीएसए नहीं करा लेकिन आपको बेसिक्स पता ही है। जैसे मैंने बोला कि अभी सिंपल सी मैथ मैंने बताई कि वो इज इक्वल टू ऑपरेटर हटा के ऊपर लगा दो, आप एक इज इक्वल टू का पैसा बचा सकते हो। एज सिंपल एज दैट। आप वो गैस प्राइस बचा लोगे। आ रही है बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो आपको अच्छे से करनी पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे उतना ही अच्छा सॉलिडिटी डेवलपर रहोगे, और उतना ही ज्यादा आपकी वैल्यू होती है इंडस्ट्री में। और उतने ही ज्यादा अकॉर्डिंगली आपको आपका रिकॉर्ड्स देख के आपके पैकेजेस डिसाइड हो। अगर ऐसी कोई हौड़ा जौड़ा डेवलपर ले आओगे ना सॉलिडिटी, जिसने पता पड़े कुछ लूप्स लगा दिए, और वो सोच रहा है अरे लगाते चले जाओ, फालतू के वेरिएबल्स डिस्क्राइब कर रखे हैं जिनका काम नहीं है, जहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो सकते हैं। अब कई सारी मैथ की लाइब्रेरीज हैं आज के टाइम पर जो आ चुकी हैं, जो इथेरियम देता है, जो ऑप्टिमाइज्ड है, जो जो ऑडिट है। ऑडिट मतलब कि जो सारे के सारे वल्नरेबल्स चेक करके कहीं कुछ फंस ना जाए, उस चक्कर में वी यूज देम। तो जितने ज्यादा आप अच्छे डेवलपर तभी कहलाते हो सॉलिडिटी में जितना ज्यादा आपका कमांड बनता है। That is all about efficiency. If I mean everyone's write any smart contract code, then they need to focus on optimization, right? Otherwise, it will end up with more transaction fees or bad code. Yes, Kushal, that you are right. You are right. कि जब भी आप कोई एक बार अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे मैं अगर अपनी कंपनी में बताऊं, मैं जितने मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेरी कंपनी नहीं कोई भी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पर जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो तो आपके बाद एक सीनियर डेवलपर जो है वो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब ये होता है कि वल्नरेबिलिटीज देखना, ठीक है, जैसे आपके ऑडिटिंग होती है ना आपके फर्म्स में, वैसे यहाँ पर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर एक ऐसी एक जॉब रोल है जिसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रहना पड़ता है, और बहुत ज्यादा मनी, मतलब जो बोलते हैं ना मनी माइंड जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत रिस्क पे है। जैसे आपके साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स होते हैं ना, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनके पैकेजेस भी, क्योंकि वो उनके पैकेजेस इतने हाई होते हैं क्योंकि वो एक सिक्योरिटी को संभाल रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। तो ऐसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर जो है, अगर वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट करता है ना, तो वो 1 से 2 हजार डॉलर और इससे भी ज्यादा लेता है। अच्छे ऑडिटर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं कंपनी से। ऑडिटिंग फर्म्स हैं जो बस यही चेक करती है कि यहाँ पे आपका देखो ये जो पर्टिकुलर कोड लिखा हुआ है ये वल्नेबल है, ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, ठीक है। ऑडिटिंग में ये ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट थोड़ा कम देखा जाता है। ऑप्टिमाइजेशन आपको देखना है, ऑडिटिंग में देखा जाता है कि कहीं से कहीं तक जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वल्नरेबल तो नहीं है। अगर कहीं ना कहीं से कोई हैक ना हो जाए, कहीं से फंड्स लीक तो नहीं हो रहे हैं, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, मैंने अभी बताया ना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के अंदर कोई ऐसा अटैक तो नहीं हो रहा है, बहुत सारे अटैक्स होते हैं। तो पैसा बचाना, जितना आप कंपनी का पैसा बचाओगे उतना ही आपका पैसा बढ़ाएगी वो, सीधी सी बात है। दैट्स लाइक हाउ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर वर्क। एडिटिंग इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह नहीं रहता है, लेकिन कई लोग ऑप्टिमाइजेशन एज अ प्लस सर्विस दे देते हैं। जैसे हम, मैंने कई ऐसे स्मार्ट, मेरे कुछ दोस्त हैं वो ऑडिटिंग फर्म्स में काम करते हैं, तो इससे ही मतलब ठीक है, हम लोग जब मीटिंग करते हैं तो हम लोग बता देते हैं गाइस यू कैन जस्ट ऑप्टिमाइज दिस थिंग। बट ऑडिटिंग का जो मेन फंडा है वो ऑल अबाउट सिक्योरिटी। वहां पे सबसे पहला जो रीजन होता है ऑडिटिंग का वो ये होता है कि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर है कि नहीं। सिक्योर है तभी वो इंडस्ट्री में देखा जाता है। हाँ ठीक है, आज तो यार 11 बज गए, बहुत लंबा समय हो गया। किसी का कोई और डाउट है तो बताओ, नहीं तो सेशन एंड करते हैं। क्या बात है, 27 पीपल, वेरी गुड। कल तुम लोगों की इथेरियम खत्म हो जाएगी थ्योरेटिकली। मेरे को अगली वीक तुम लोगों को थोड़ा सा जो है इन चीजों के बारे में बता देंगे करियर के लेके। बहुत लोगों के डीएम कॉल्स आए हैं, किसी की मेंटल हेल्थ खराब चल रही है ज्यादा। मेंटल हेल्थ में तो 2-3 सेशन हुए इस वीक तो यार, इतना ज्यादा। तो बैठते हैं सैटरडे संडे हम लोग, तुम लोगों के डाउट्स, तुम लोगों की अपनाएं विपदाएं, आपत्ति विपत्ति देखते हैं, सॉल्व करते हैं सैटरडे। तो इथेरियम गैस का कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, सारे के ये थोड़े दिमाग के घोड़े